हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पिवेलियन। मैं हूं फखरे आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, हमारी खुसूसी कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप लाइव फ्रॉम द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और पिवेलियन में मेरे साथ मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड्स, सुपरस्टार्स, द सुल्तान ऑफ स्विंग वसीम अकरम, the toe-breaking, nerve-wracking Waqar Yunus, the Mr. always cool, calm and composed Misbah Haq, and the very naughty, young, sizzling Wahab Riaz. Gentlemen, assalamu alaikum and welcome. Walaikum salam. Great to have you here. Hello. All of you well rested? Yes, kind of. Good, good. Yeah, excellent. Waqar was trending last night one more time, I believe, on social legend media. Legend. You're becoming a social media legend. It's all because of you, Fakhar. It's all because of you. I'm very thankful to you. We all well rested. Takriban. Oh, takriban. Oh, Misbah on the front foot. Earlier on in the innings. Well done, Misbah. I like that. ठीक है, ये याद रखी हूँ। पहली बॉल पे स्लॉग स्वीप। जी मैं देख ली। ठीक है। Very unlike Misbah. Very unlike that, Misbah. Special day today, the 1st of November. आज के दिन पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीता था, नेहरू कप, the golden era of Pakistani cricket as we all call it. आखिरी ओवर था, सेकंड लास्ट बॉल थी और सेकंड लास्ट बॉल विव रिचर्ड्स बॉलिंग कर रहे थे और हमारे अपने वसीम अकरम ने जोरदार छक्का मारा था और नेहरू कप हम लोग जीते थे। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशंस। Thank you very much. What a great memory. That was about ये 32 पीसीबी ने आज ट्रिब्यूट दिया है, ट्वीट किया। On this day in 1989, Pakistan won the Nehru Cup after a thrilling victory over the West Indies in Kolkata. And Wasim Akram hit a match-winning six with only one ball left. What a legend you are, sir. What a legend you are. Absolutely. It was a huge deal in 1989, 32 years ago. I was about 21 years old. Yep. And Nehru Cup was in India. You were there? Yeah. You were there, I'll yes? talk after you finish. Huh? I'll talk after you finish. Okay. So we had a couple of funny incidents on that tour. One was regarding the great Abdul Qadir and Curtly Ambrose. क्यों ऐसी जनाब? That I'll come back to it later. Okay. But there was a huge deal winning in India, and that too at Eden Gardens, Calcutta. Yes. 120,000 people watching. And I remember that particular shot जो लिखा उस पे के दो गेंदों पे I think 4 चाहिए था. I went into bat. I vaguely remember, guys, sometimes मेरी स्टोरी ऊपर नीचे हो जाती है बिकॉज 32 साल पहले की बात है। एकदम जाके सारा कुछ काट के ना डाले करो सोशल मीडिया पे, आप गलत थे। Like little kids, man. They love you guys. They want it to be perfect. So Everything I has went to be into perfect. bat. Imran bhai was batting well set, 50 plus, and मेरे पास आए वो, 2 गेंदें आई थिंक रहती थी, इफ आई रिमेम्बर के 3 कहते हैं सिंगल करनी है। विव रिचर्ड इसलिए ओवर कर रहा था बिकॉज उनके मेन बॉलर्स के ओवर ख़त्म हो चुके थे। ही वांटेड कि हमें पहले आउट कर ले, बट वो आउट हुए नहीं हम। एंड सो मैंने कहा जी श्योर स्किप। अब इमरान भाई कह रहे हैं वेल सेट है कि आखिरी बॉल पे मैं मार दूंगा इसको चौका विव रिचर्ड्स को। ही वाज कॉन्फिडेंट तुम आउट ना होना, बिकॉज आउट हो जाते तो उनका दूसरा बैट्समैन आया था टेल एंडर और वो बैटिंग कर लेते। सो मैं गार्ड वार्ड लिया। इट वाज नॉइजी, इट वाज पैक्ड, पीपल वर स्क्रीमिंग। सो आई गेव माई सेल्फ रूम इसलिए दिया गया मुझे वो फॉलो करेगा तो मैं ऐसे करके रोक के ना सिंगल ले लूँगा, एक्स्ट्रा कवर या इधर ऐसे कर लूँगा। एंड फॉर्चुनेटली फॉर मी आई गेव माई सेल्फ रूम इंस्टेड ऑफ बॉलिंग अ यॉर्कर। वो तेज यॉर्कर मारता था विव, उसने लेंथ बॉल कर दिया। एंड इट वॉज जस्ट यू नो वो जो गट फीलिंग आप देखते हो ये गो फॉर इट। तो उसने लेंथ बॉल किया, मैं हटा, उसने फॉलो किया। I went towards mid wicket and ball went into the stands. But it's a 6. But the funny thing was on the way back to I was sprinting and kind of running in, and skipper got hold of me. I told you to take a single. मैं कहा जी मैच जीत गए यहाँ। वो भूले नहीं थे। आप बताएं क्या बता रहे हैं? That was my first tour. You know, मैं शारजा में पहला मेरा टूर था। शारजा हम लोग खेले थे, शारजा कप खेले थे, इफ यू रिमेंबर इट। वी वन दैट ऑल्सो बिफोर गोइंग टू इंडिया, क्योंकि इंडिया में नेहरू कप वाज लाइक अ वर्ल्ड कप। जी क्योंकि टॉप की 8 टीमें, पूरे का पूरा सारी 8 टीमें थी उस टाइम, 8 की 8 खेल रही थी और 8 बहुत तगड़ी टीमें थी और इंडिया में फिर ऊपर से।
So it was a massive kind of tour for me, पहला tour. और दूसरा ये कि इमरान भाई तो खैर it was larger than life for us. Wasim भाई was a star, you know, उस टाइम स्टार बन गए हुए थे. हम कौन थे जी? इंजी हो गया, मुशी हो गया, मोइन, सईद अनवर, हम अभी we were just coming in. So it was something very very special for us. और वसीम भाई की ना सिर्फ वो इनिंग्स, बल्कि वसीम भाई ने यस बॉल से तो खैर बहुत सारे मैचेस जितवाए हुए हैं इन्होंने, अनगिनत मैचेस जितवाए हुए हैं, लेकिन बैटिंग से भी जो इनकी एक और इनिंग भी मुझे याद आती है वो एडलेड में 100 हुआ है, इफ यू रिमेंबर दैट. दैट वाज अ फैंटास्टिक 100 ही स्कोर्ड इन एडलेड आल्सो. और आई मीन जितनी यादें. और दूसरी एक और चीज़ लास्ट बिट वो ये था कि जब हम वापस आए पाकिस्तान, क्योंकि हम शारजा कप भी जीत के आए थे, इंडिया भी वहाँ था, फिर हम नेहरू कप जीत के आए, वहाँ से सारे मैचेस जीत, सारी टीमों से जीते थे हम लोग. और फिर हम लोग वापस जब लाहौर एयरपोर्ट, पुराना एयरपोर्ट जो आजकल हज टर्मिनल बन गया, उधर लैंड किए थे. और हम जब बाहर आए थे तो उस टाइम बड़ी बसें तो नहीं होती थी, छोटी वैन्स थी, तो हम वैन्स में बैठे थे. आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, बढ़ा चढ़ा के नहीं बात कर रहा, इतने लोग थे कि, और वो आगे खड़े हो गए, कहते बाहर आओ जी. मतलब बाहर आओ जी, मतलब वो कह रहे थे बस से बाहर आए जी, हमने आपको कंधों पे उठाना है. बट वो चांस उन्होंने कुछ आगे लेट गए, कुछ ने बस पूरी वैन जो है हिला रहे हैं. It was just some year that 1989. That's the romance of the game, and that's how Pakistani people love their legends. Yeah, I can tell that story later about the great नहीं Abdul वो Qadir तो and मैं नहीं भूला, वो मैं बिल्कुल Curtly Ambrose one. मुझे तो ये पहले, मैं तो इस स्टोरी पे बड़ा हंसा हूँ कि जब मैंने कहा था तो सिंगल लो, तूने चिक्का क्यों मारा? Yeah, he did. ये तो बड़ा मजेदार. कादिर भाई वाली स्टोरी शायद थोड़ी सी सेंसर करनी पड़े कहीं ना कहीं. I will. चल देखे, only on the pavilion will you get to hear stories जिनके अंदर censorship अप्लाई करनी पड़ेगी. सिर्फ यहाँ पे ही आपको ये सब कुछ सुनने और देखने को मिल सकता है, तो देखते रहिए The Pavilion. आइए, let's get to the business of the ICC Men's T20 World Cup. We've got a game in store for you, और आज का मुकाबला है England. The demolition squad of England are going to clash with Sri Lanka. ये है मैच दोस्तों, शारजा क्रिकेट स्टेडियम से बराह रास्त सबसे कुछ देर बाद लेकर आएंगे. इस पूल के टेबल पर नजर डाल लेते हैं कि पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त सूरत हाल किस तरीके से है. ये रही आपकी स्क्रीन के ऊपर पॉइंट्स टेबल. याद रहे कि श्रीलंका स्ट्रगल कर रहा है इस वक्त. दे वांट टू रियली गेट दैट सम काइंड ऑफ स्कोर. इंग्लैंड कंफर्टेबल. हियर इज द पॉइंट्स टेबल आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये रहा पॉइंट्स टेबल. इंग्लैंड 3 मैचेस खेला है, तीनों जीता है, 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पे है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह. और साउथ अफ्रीका 3 खेल के 2 हारा है, 2 जीता है, 1 हारा है, और 4 पॉइंट्स के साथ. बट ऑस्ट्रेलिया की भी यही पोजीशन है, 4 पॉइंट्स के साथ. देन इज श्रीलंका. श्रीलंका रियली वांट्स कि ये किसी तरीके से अपने चौथे, ये जो मैच आज खेलेंगे इनका चौथा मैच होगा, इसको किसी तरीके से इसको अगले मैच को जीतें, इफ दे वांट टू हैव एनी होप मैथमेटिकली टू बी एबल टू eye a spot there. But England is a demolition squad. They are just absolutely unstoppable and ruthless the way they're playing their cricket. इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन कल नजर डालते हैं जिस मैच के बारे में इस वक्त पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सोशल मीडिया में धूम मची हुई है, और वो था जिस क्लिनिकल तरीके से न्यूजीलैंड ने इंडिया की टीम को हराया एट द रिंग ऑफ फायर. इंडिया ने कल पहले बैटिंग की, 110 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर. अगेन टॉप ऑर्डर फेल हुआ इंडिया का. इस दफा विराट कोहली भी उनको नहीं बचा सके, वो भी स्कोर ना कर सके बड़ा. बट बोल्ड देयर बॉलिंग दैट वंडरफुल स्पेल, 3 विकेट्स ही गॉट फॉर 20 रन्स. जवाब में न्यूजीलैंड ने बड़े ही आराम से 14.3 ओवर में 111 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे मुकम्मल किए. मिचेल की इनिंग्स 49 की और विलियमसन ने कैप्टन इनिंग ऑफ 33. बट इट वाज एन ऑल इन ऑल ग्रेट एफर्ट देयर बाय न्यूजीलैंड. बात सूरत हाल आपके सामने है, स्कोर कार्ड, इनका पॉइंट्स टेबल भी देख लेते हैं कि इस वक्त इस जो हमारा ग्रुप है, क्योंकि तो इस पे पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं. पाकिस्तान इस पॉइंट्स टेबल में बिल्कुल टॉप पे है, 3 मैचेस 3 विन्स 6 पॉइंट्स. अफगानिस्तान ऑल्सो लुकिंग रियली गुड, 3 मैचेस 2 विन्स 1 लॉस 4 पॉइंट्स. न्यूजीलैंड 2 मैचेस 1 लॉस 1 विन, they've got 2 points. Namibia's got 2 points. India and Scotland have not scored this yet. I know a lot of people would be watching, you know, this is a very, बहुत सारे लोगों के लिए शॉक है कि इंडिया बिल्कुल एट द बॉटम ऑफ द टेबल टाइप का माहौल में है इस वक्त. इसके ऊपर बात करते हैं. वसीम, आई स्टार्ट विद यू. बहुत शदीद बैशिंग हो रही है भारतीय खिलाड़ियों की, और साथ साथ में बीसीसीआई की, और आईपीएल को बड़ा रगड़ा पड़ रहा है.
आईपीएल के ऊपर हमने भी कल बात की थी, लेकिन अब वो मोमेंटम पकड़ता जा रहा है। उनका मीडिया भी, अगर आज सुबह जो आप मॉनिटर करें ऑनलाइन, तो वो आईपीएल की भी बड़ी जो है ना उसको कर रहे हैं। सुनील गावस्कर ने ये कहा कि आईपीएल इज बिगर देन द वर्ल्ड कप, ये उनका स्टेटमेंट भी आया है। और फिर उन्होंने अपनी एक जगह पे कमेंट्री में और कहीं पे ये भी बोला कि ये बाउंड्रीज बड़ी हैं, आईपीएल में बाउंड्रीज छोटी होती हैं, चूंकि उनको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा चौके छक्के लगे। और कल आप देख रहे हैं कि किसी भी इंडियन बैट्समैन ने क्लियर नहीं की बाउंड्री, सब कैच आउट हुए हैं। लुक, दिस इज वर्ल्ड कप, यहाँ पे बाउंड्रीज आईसीसी ने लगानी है, बीसीसीआई ने। आई सपोज आईपीएल नहीं है, आईपीएल कांट बी बिगर देन वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप इज द बिगेस्ट टूर्नामेंट इन वर्ल्ड क्रिकेट। उसका आई मीन मैं पैसे वाइज बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। फॉर इवन प्लेयर्स इन द कंट्रीज, winning a World Cup is a different feeling altogether. Sunil bhai has his own opinion, I'm fine with it, but I don't agree with his opinion कि IPL is bigger than World Cup. I agree with criticism होगा because जिस तरीके से इंडिया favorites थी to win the World Cup, and now then you know they are in kind of danger not to even qualify for the semi-finals. So that is a big kind of shock to India and to cricketing world, even to us. We thought कि India have a fair chance, but I think they did miss trick, एक दो ट्रिक उन्होंने मिस किए हैं। एक तो सिलेक्शन में जो एक लेग स्पिनर नहीं लेके आए, दो ऑफ स्पिनर ले आए हैं और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो कि अगर सेकंड हाफ की बॉलिंग आती है सो ऑब्वियसली फॉर स्पिनर्स आई मीन ये तो कर लगता है थोड़ी बहुत बॉल गीले बॉल से, पर इनके लिए फिंगर स्पिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और वंस यू आर डाउन, टूर्नामेंट छोटा है, लंबा नहीं है, कम बैक के चांसेस कम होते हैं टीम के। वो ये लंबा नहीं है, लंबे से मुराद इट्स नॉट लाइक लेट्स से वर्ल्ड कप अभी हुआ था 2019 का, हर टीम ने हर एक से खेला था। जी जी ये तो ग्रुप्स है ना जिसमें 5-5 मैच है आपके। बिल्कुल ऐसे सो इट्स नॉट द टूर्नामेंट, इट्स वन ऑफ दोस टूर्नामेंट्स वी हैव टू विन स्ट्रेट अवे एंड बी इन द रेस, नॉट हैपनिंग विद इंडिया। गेट टू द बिजनेस। वकार, डू यू थिंक ये जो थॉट प्रोसेस है कि आईपीएल इज बिगर देन द वर्ल्ड कप, क्या आपको लगता है कि ये एरोगेंस और ये क्लोज माइंडेडनेस है जो जिसका नतीजा आज ये है कि आज इंडिया इज स्टेयरिंग डाउन द बैरल के वो शायद क्वालिफाई भी ना करे अगले सेमीज के लिए? Look, you cannot really compare any tournament with World Cup. World Cup तो उसका एक अपनी अहमियत है क्योंकि सारे मुल्कों की टीमें खेलती हैं। IPL is like states playing against states. Yes, you got money involved in it, बहुत फाइनेंस उसमें इंजेक्ट किया हुआ है, लेकिन इट्स वेरी सिंपल। वर्ल्ड क्रिकेट उसमें आप उसको मैच नहीं कर सकते। एज वसीम भाई सेड कि सनी भाई की अपनी थिंकिंग है और उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। ही इज़ इंडियन ऑल्सो, ऑफ कोर्स यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन आई ऑल्सो डोंट एग्री विद दैट। आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट, और फिर जो हम पिछले काफ़ी शो से ये भी बात करते हैं कि ये जो बिग थ्री हैं ये भी अब ख़त्म होना चाहिए, बिकॉज यू सॉ दैट नाउ के दूसरी टीमें वर्ल्ड वाइड कहाँ पहुँची हुई हैं। तो पाकिस्तान कहाँ है? वी प्लेइंग ग्रेट क्रिकेट। अफगानिस्तान प्लेइंग अ वंडरफुल क्रिकेट। देयर आर टीम्स हु वांट्स ऑल द शेयर आउट ऑफ दैट बिकॉज दे ब्रिंगिंग द शेयर इन ऑल्सो। सो दे हैव टू रियली सिट डाउन, द ICC करता धरता जो भी हैं एंड टॉक इट आउट। एब्सोल्युटली। मिसबा, इंडियन बैटिंग की हम लोग बात करते हैं कि जी रोहित शर्मा ज़बरदस्त ओपनर हैं, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। विराट कोहली इज़ कंसिडर्ड अ लेजेंड अप देयर एंड ऑल। मगर एक चीज़ बार बार यूँ नज़र आ रही है कि द मोमेंट ये वहाब ने बिल्कुल शुरू में बोला था कि आप इंडिया की टॉप ऑर्डर को अगर हिला दें तो पीछे उनका जो है मिडिल ऑर्डर वो नहीं सस्टेन कर पाता प्रेशर। ये क्या हमें पूरी दुनिया की क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशंस को ये वीकनेस तो अब नज़र आ गई है वाज़े तौर पे? जी बिल्कुल, बात ठीक है। मैं थोड़ा सा जो बातें हो रही हैं कि इंडिया एग्रेसिवली नहीं खेल रहा और इंडिया के जो बैट्समैन हैं वो थोड़े से लग रहे हैं जैसे उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा अपनी बैटिंग पे। जिन बॉलों को पहले मारते थे, फ्लुएंट खेलते थे, वो नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है जो इवन पाकिस्तान के साथ भी कुछ हद तक ये चीज़ हुई है। जब हमने डोमेस्टिक में पिचें थोड़ी सी बॉलिंग फ्रेंडली बनानी शुरू की, सीम विकेट्स बनानी शुरू की, तो वो एक ऐसा पीरियड है जिसमें हमारे बैट्समैन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना शुरू हो गए। हमारा ये ख्याल था कि शायद इनकी टेक्निक्स बेहतर होंगी, डिफेंसिव टेक्निक। हाँ जी, डिफेंसिव टेक्निक तो आपकी शायद थोड़ी बेहतर हो जाए, बट जो इंडियन बैट्समैनों की एक पहले क्वालिटी थी कि बैटिंग पिचों पे वो फ्लुएंटली खेलते थे, कॉन्फिडेंट होते थे, अच्छे बॉलों को भी ट्रस्ट करते थे और शॉटें खेलते थे, उनको चौके मारते थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो ज़ाहिर है प्रेशर है
मेंटल एक टायर्डनेस है उनकी कि वो बहुत ज़्यादा बबल्स में रहे हैं, बट वही चीज़ जो हमें हमारे साथ होती थी यूएई में खेल के, उन पिचेस पे खेल के, जो ट्रू नहीं होती थी, फियर फैक्टर कहीं ना कहीं एज ए बैट्समैन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम हो जाता है। अपनी शॉटें खेलते हुए थोड़ा सा झिझकते हैं, डरते हैं। आईपीएल खेले हैं, पिचेस अजीबो गरीब सी पिचेस, मैंने काफ़ी मैचेस उस पर देखे हैं, तो पिचेस ऐसी थी कि वहाँ पे एज ए बैट्समैन कही तो आप अपना कॉन्फिडेंस आपका शेक हो जाता है, आप उस तरीके से फ्रीली शॉटें नहीं मारते। Wow, this is such an important thing और that you bring to the table. ऑन द अदर साइड मैं इसकी एक और दूसरी तरफ से बात करूँगा। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में जब आया तो पाकिस्तान ने पीएसएल खेली है, पीएसएल अच्छी पिचेस पे हुई है। हमारे मोस्टली जो प्लेयर हैं वो वहाँ पे शॉटें खेल के, आसिफ है, ये सारे, बाबर, रिजवान, पीछे साउथ अफ्रीका में भी अच्छी पिचेस पे खेल के आए, इंग्लैंड में भी ये रन्स करके हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल इनका बेहतर है। और दूसरी तरफ बॉलिंग हमारी, हमने क्योंकि यहाँ T20 में खेले हैं, साउथ अफ्रीका में खेले हैं, टफ कंडीशंस थी, फ्लैट पिचेस थी। हमारे बॉलर्स इतने स्किलफुल हैं, उन्होंने वहाँ बॉलिंग की है, और वहाँ जब आप बॉलिंग करके आते हैं और सडनली आप इन कंडीशंस में आते हैं जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है, गेंद ग्रिप होना शुरू हो जाता है, फास्ट बॉलर का गेंद भी आपको हिलता हुआ भी नज़र आता है, दैट्स अ प्लस। क्योंकि आप वहाँ पे कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि ओह ये तो मतलब, इसलिए हमारी बॉलिंग ने बिल्कुल अभी तक मतलब आउट क्लास किया हुआ है जो भी टीम सामने आ रही है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं एज ए प्लेयर अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप गंदी पिचेस पे खेलेंगे, अच्छी पिच पे भी जाके कई दफ़ा आपको शॉटें मारते हुए आपको कहीं ना कहीं वो, क्योंकि आपकी एक आदत बनी होती है, आपको रोकती है वो चीज़। इंडियन हमेशा बैटिंग पिचेस पे खेलते हैं और देखें ग्रेड्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, बैटिंग पिचेस से कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। अभी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। अभी आईपीएल ने शायद ये कोई उन पिचेस पे खेलने के बाद थोड़ा सा अफेक्ट किया उनको, Right. इट माइट बी अ रीज़न। This is very interesting. I think Misbah, but we have to also give credit to the New Zealand bowlers also. They Yeah, did not I know. give them an inch आई to नो move. पाकिस्तान को क्रेडिट, बहुत अच्छी बॉलिंग की Yeah, हमने भी, yeah. न्यूजीलैंड ने भी सेम किया। एक और जो चीज़ मुझे नज़र आती है कि जो अक्सर बात होती है, व्हेन यू हैव वेरी गुड टेक्निकली साउंड प्लेयर्स जो इंडियन प्लेयर्स हैं, एंड दे प्ले अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ द बॉल, Yeah. उनमें कोई ऐसे स्लॉग या ऐसे नहीं है जैसे इंग्लैंड के बैट्समैन हैं, वो दे क्रिएट्स देयर ओन लेंथ। वो जब अटैक करते हैं तो ये नहीं सोचते गेंद अच्छा है बुरा है, वो फिर और बॉलर को अंडर प्रेशर करते हैं। इंडियंस जो टॉप ऑर्डर है या जैसे हमारा भी है, अब रिजवान थोड़ा सा अनसेटल करता है बॉलर्स को, वो वेट करते हैं कि बॉलर गलती करेगा, कोई हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं बॉल देगा तो हम उसको अटैक करेंगे। उस पे जब प्रेशर इन पिचेस पे एक दो बिल्ड हो जाता है 2-3 ओवर्स में, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दैट। आपने प्रेशर डालना है अगली बिल्कुल टीम। है। वसीम, you wanted to say something to this point. No, I want to discuss India तो बहुत कर लिया, I want to discuss this England team. जी आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं हम Yeah. लोग, वो आ रहे हैं क्विकली। मैं इस पे कर लूँ, बड़ा अच्छा पॉइंट मिसबा ने एक चीज़ जो भी रेस की, उन्होंने कहा जी वो हमने भी पाकिस्तान में एक दफ़ा बॉलर फ्रेंडली पिचेस बनाई थी तो सारे बैट्समैनों के बजाय कॉन्फिडेंस बेहतर होने की, टेक्निक वो सही इवन होने हमारे की, बॉलर्स भी उस दौर में वो पेस खत्म हो गई, स्पिनर खत्म हो गए, उसने भी हमारे बॉलर्स को भी इफेक्ट किया। देखिए सब मिसबा भाई की बात बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मुझे रीज़न कुछ और नज़र आते हैं। उसकी वजह यह है कि आप जब ऐसी विकेट्स पे आईपीएल खेल रहे हैं बिफोर द वर्ल्ड कप, तो इट शुड एनहांस योर Game. स्किल्स Right, एंड yeah. एनहांस योर गेम्स, जिसका हम लोगों ने एक जो 2 प्रैक्टिस मैचेस इंडिया ने खेले हैं वो बड़े कन्विंसिंगली जीत गए विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स, राइट। अडॉप्टेशन की बात आ जाती है कि बैट्समैनों का कॉन्फिडेंस, तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस पूरे टूर्नामेंट में हमने ये देखा है कि सिवाय अफगानिस्तान के जिस टीम ने भी पहले बैटिंग किया है, दे आर वेरी अनसेटल्ड कि क्या Reason? टारगेट दिया जाए। Reason क्या है? Because that's the back of their mind, they don't know कि what will be the right target to So what set. should they do? So basically the thing is कि जो इंग्लैंड की गेम है, we'll talk about that कि इंग्लैंड क्या करता है। हमने पहले भी बात की कि इंग्लैंड is not worried about the conditions, they play the way they play. if you're going to bring in England and you want to talk about England, Yeah. and we Yeah, all but want to talk like- about England, then we're going to have to take a break, because when we come back, the next segment is going to be about England and the match that we have ahead of us. देखते रहिए The Pavilion, मिलते हैं इस वक्फे के बाद ये स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स पर।
वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, हमारी खुसूसी कवरेज होती है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कल के मैच की, जहां पर न्यूजीलैंड ने इंडिया को बहुत ही जबरदस्त तरीके से हराया एट द रिंग ऑफ फायर, एंड इंडिया नाउ इज इन डेस्परेट ट्रबल trying to make their way back onto that points table, somehow secure a position in the semi-finals. ब्रेक पे जाने से पहले वहाब रियाज जवाब दे रहे थे और इंग्लैंड की बात शुरू हो गई, तो मैंने कहा ब्रेक के बाद आगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वहाब आप दोबारा अपनी कॉन्वर्सेशन वहां से शुरू कर देखिए, सकते हम अगर इंग्लैंड का कंपैरिजन करें, लेट्स स्टार्ट विद इंग्लैंड का कंपैरिजन करें तो वो क्या करती है, सबसे अच्छा क्या करी है इस वक्त? वो ये करी है कि वो कंडीशंस पे नहीं जा रही, दे आर बैकिंग देयर ओन स्किल्स, दे आर बैकिंग देयर प्लान, द वे दे प्ले, दे नो कि उनका हाउ मच टारगेट दे नीड टू अचीव। और स्पेसिफिकली हमने देखा कि अभी क्योंकि उन्होंने सिर्फ चेज किया है, लेकिन चेज में भी ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट भी आप ये देखें कि द वे दे हैव चेज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, दैट शोड कि उनका दे आर वेरी क्लियर साइड, दे नो व्हाट दे हैव टू डू। हो सकता है कि अगर आज टॉस जीत के उनको पहले बैटिंग करनी पड़े, सो यू विल अगेन सी दैट डिफरेंस, मे बी दे गेट आउट ऑन 100 बट दे विल टारगेट टू स्कोर मोर देन 170-180 ऑन दिस शारजा विकेट। इंडिया और बाकी टीम्स क्या कर रही हैं, अगर अब देखें स्वाय अफगानिस्तान की ओर सिर्फ एक मैच जो है हमने देखा बांग्लादेश का, वे दे हैव पुट 170, उसके अलावा जो जितना भी अभी तक टारगेट हुआ, नो टीम हैज बीन एबल टू स्कोर मोर देन 155 प्रोबेबली बैटिंग फर्स्ट, राइट। उसमें क्या हो रहा है कि दे आर वेरी अनसर्टन, देयर इज सम अनसर्टनिटी के क्या टारगेट होना चाहिए, वेदर वी स्कोर 140, क्योंकि शुरू में जब वो आते हैं वो बैक ऑफ द माइंड होता है, बॉल भी थोड़ा सा सीम हो जाता है, हल्का सा एक आधा बॉल कोई फंस जाता है, एंड देन दे थिंक अबाउट, यार ये लगता है कि ये विकेट 140 वाला है, बट जैसे ही दूसरी टीम आती है वो उसको इतना अच्छा कैपिटलाइज करती है, यानी कि इंडिया की बॉलिंग इज नॉट दैट बैड। लेकिन कल देखे कि कल न्यूजीलैंड ने उनको 14 ओवरों में मैच हरा दिया। सो मुझे ये लग रहा है कि जो इंडिया की अगर जो हम बात करें, इंडिया इज़ नॉट बेसिकली बैकिंग देमसेल्व्स कि दे कैन पुट ऑन अ गुड स्कोर इवन बैटिंग फर्स्ट। सो वहाँ वटेवर अब जो सोशल मीडिया पे या उनका मीडिया उन पे जो अटैक कर रहा है, ये वही ग्रेट प्लेयर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीते थे अंडर द ग्रेट कैप्टनसी ऑफ विराट कोहली, वही है इंग्लैंड में जीते थे टेस्ट सीरीज, एंड नाउ दे गॉट सच अ बैकलैश नाउ, एंड यू थिंक दे विल गेट आउट ऑफ इट? देखिए, दे शुड गेट आउट ऑफ इट। आई नो कि लोग नाराज़ हैं, लोग खुश नहीं है परफॉर्मेंसेस से, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग, इवन वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इंडिया विल बी in this position right now, which they are right now at the moment. So the thing is कि जो bilateral series होती है वसीम भाई, उसमें आपके पास चांस होता है, that is a series of that whether you are playing 3 games or 5 games or 7 games, right? वर्ल्ड कप में ये ग्रुप एक ऐसा बना है कि you just have to beat all 3 good teams. अगर आप 2 टीमों से मैच हार जाते हैं, which is very normal अगर आप देखें, लेकिन you cannot make a comeback because you're not playing against those team again. अगर यही ग्रुप इंडिया दूसरे ग्रुप में होता तो इंडिया still was with the chance to qualify for the semi-finals, because वहाँ पे नबीबिया नहीं है और वहाँ पे स्कॉटलैंड नहीं है, so most probably बांग्लादेश और श्रीलंका को you rate more highly. फैंस का गुस्सा अपनी जगह ठीक है, इंडिया की जो एक्सपेक्टेशंस थी इंडिया उस पर नहीं खेला, दे हैव ग्रेट प्लेयर्स, उन्होंने हर जगह जाकर परफॉर्म किया। इंडिया इज़ अ टीम जब ऑस्ट्रेलिया में 38 पे आउट हुई है टेस्ट मैच में, अगला टेस्ट मैच दे वन बाय एन इनिंग्स, सो यू नो दैट इज सम इनक्रेडिबल कमबैक्स दे मेक। दे आर अ वेरी गुड टीम, दे आर वेरी टफ गाइज, बट अनफॉर्चुनेटली द प्रेशर वाज माउंटेड सो बैडली ऑन टू देम पहला मैच हारने के बाद, एंड देन देखिए क्रिकेट खेलनी चाहिए, उस ब्लॉक में रहना चाहिए। 6 दिन का गैप was too much of a gap. Watching other teams playing, उनका जीतना, watching other teams qualifying as well. for exactly. the semi. So once they know कि Pakistan has qualified, और अगर पाकिस्तान होती कोई भी होती which has qualified, the pressure was on them, because you know why? Because now they cannot lose a game. So I have a question to all 3 of you now. You can answer one by one. Start off with Misbah. England team. बाकी टीमें जो खेलेंगी इनके साथ, जो आज भी श्रीलंका भी खेल रही है, जब ये सेमी में भी आएंगे, they look like they're unstoppable. So what are their weaknesses, guys? Give me your opinion, all 3 of you. Let's see how can teams tackle them. वसीम भाई, in the group stages, it is very difficult कि आप इंग्लैंड को पकड़े, क्योंकि जिस तरह वो फ्रीली खेलते हैं, they have no pressure. But एक चीज़ ज़रूर है कि ये भी बटलर पे, जेसन रॉय पे बहुत डिपेंड करते हैं, और ऊपर से इनमें से
दोनों में से एक कोई ना कोई ऐसा स्टार्ट देता है या ऐसे रन्स करता है जिसकी वजह से वो जो गैप है दूसरी टीमों से वो बहुत बड़ा हो जाता है। नो डाउट कि इनके पास रिसोर्सेज नीचे भी बहुत अच्छे हैं, इनके सारे बैट्समैन ऐसे हैं कि वो अकेला कोई बंदा जो है वो दो विकेटें गिरती भी हैं, सो दे गो टू प्लान बी। द प्लान बी इज डेविड मिलान। जी जी, वो ही मतलब they are ahead of the other teams in terms of resources white ball cricket में। but ये चीज़ ज़रूर याद रखें, when it goes to knockout stages, 2016 का फाइनल इंग्लैंड उस टाइम भी ऐसे ही खेल रही थी, कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर पड़ा और उतने रन नहीं हुए उनसे जो नॉर्मली होते हैं, बिकॉज वो जो एडेड प्रेशर है जो फ्रीली खेलने वाली टीम होती है जब ऐसी सिचुएशन में जाती है वो यूज टू नहीं होते हैं, उनके लिए थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी ऐसे खेल रहे थे, वो लग रहा था कि ये टीम बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, और जब पाकिस्तान के साथ खेले उनकी सिचुएशन डिफरेंट थी। 2019 वर्ल्ड कप जिसको कहते हैं कि मॉडर्न टीम 300 प्लस 350 400 स्कोर कर रही थी, फाइनल कैसे हुआ? बिल्कुल नॉर्मल, जिसको हम वो 90s वाली क्रिकेट कहते हैं। न्यूजीलैंड ने खेल के 237 के 38 रन किए एंड इंग्लैंड ने बड़ी मुश्किल से वो मैच टाई हुआ। तो ये ज़हन में रखें कि जब ये आप ग्रुप स्टेजेस से निकलते हैं, जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, जो मर्जी, जब स्टेक पे लगता है आपका वर्ल्ड कप, आप वे ऑफ प्लेइंग आपका कहीं ना कहीं चेंज होता है। Very good. Waqar, what do you think are the weaknesses for जो वसीम ने पूछा for England? लोग वीकनेसेस नज़र तो नहीं आ रही हैं, लेकिन इनके साथ डील कैसे करना है? आई फील यू डील फायर विद फायर। यू कांट जस्ट से कि इनको खेलने तो जिस तरीके से खेलते हैं एंड यू सिट बैक एंड होप कि ये मिस्टेक करेंगे। आपको अग्रेसिवली आना पड़ेगा एज दे आर प्लेइंग अग्रेसिव क्रिकेट, ठीक है ना। इस तरह की क्रिकेट में क्या होता है कि यू एकदम कलैप्स भी आता है। जैसे मिसबा ने कहा ना कि जब नॉकआउट स्टेज आएगा या सेमीफाइनल में जाएंगे तो देर बी चांस के ऊपर से 2 विकेटें गिरेंगी तो इनके, या 3 विकेटें गिरेंगी तो नीचे वालों ने बैटिंग नहीं की हुई, दे माइट बी इन अ डीप ट्रबल बिकॉज देन दे विल स्ट्रगल टू नो कि हमने खेलना किस तरीके से है। तो आई वुड से कि देर आर टीम्स हु विल चैलेंज देम। There is New Zealand, there is Pakistan, there is South Africa, don't forget. Australia is still out there. So there are teams. I know they are in great form. England इस टाइम लग रहा है कि वो सबसे अच्छी है, लेकिन वर्ल्ड कप स्टेज पे आके एक मैच लगता है एंड यू ऑन द फ्लाइट। जिस तरह वकार भाई अगर पाकिस्तान की भी देखें, हमने कपल ऑफ मैचेस जो जीते हैं, वो जो आपकी बात है, हमने भी वो रन्स किए हैं उतने, हमने 200 प्लस किया है, 190 प्लस लास्ट टाइम गए थे किया। ये इंग्लैंड के अगेंस्ट आपको ये करना पड़ेगा। ये वहाब योर आंसर। देखिए वीकनेसेस की जहाँ पे बात करेंगे, इफ़ यू कंपेयर इंग्लैंड की जो बैटिंग है वर्सेस इंग्लैंड बॉलिंग, सो दैट इज़ वेरी कैपेबल। इंग्लैंड की बॉलिंग में आई डोंट सी एनी डेप्थ। As a bowling unit, they are doing really good right now, but they have one wicket taker. टीम का इस वक्त बेस्ट इकोनॉमी रेट है। Exactly. But as far as the bowling that would also be considered when they will be bowling second. Yeah. So they haven't, first of all, they haven't bowled in this tournament. Second, they haven't मतलब उन्होंने second bowling नहीं की अभी तक. Plus उनकी bowling में flow तब नजर आएगा जब सेकेंड टाइम वो बॉलिंग कर रहे होंगे, थोड़ा सा ड्यू फैक्टर होगा, थोड़ा सा विकेट बेहतर होगा खेलने के लिए। और देन दे हैवली रिलाई ऑन राशिद के ओवर्स हमने देखा है कि मॉर्गन बड़े अच्छे यूटिलाइज कर रहे हैं। यू नो दे आर प्लानिंग इट रियली वेल, बट स्टिल एट अदर साइड अगर हम देखें तो व्हेन इट कम्स टू देयर फास्ट बॉलर्स, जॉर्डन एक ऐसा फास्ट बॉलर है हु इज़ वेरी गुड इन द डेप्थ, बट इवन व्हेन ही बॉल्स इन द फर्स्ट पावर प्ले ओवर्स, पहले 6 ओवर में वो बॉलिंग करने आता है, ही लीक्स रन। टाई मिल्स को वो अभी तक यूज़ नहीं करे नया बॉल, लेकिन हमने ये देखा कि टाई मिल्स को इवन के बांग्लादेश के अगेंस्ट भी ही हैज़ सफर्ड अ बिट। जो ये देखें लेंथ देखें इसकी, अब यहाँ पे आप देखें तो 3 आउट हुए हुए हैं, सो यू वुड सी उसकी लेंथ बहुत अच्छी है, बट ओवरऑल अगर आप उसका रिकॉर्ड निकाल लें इस वर्ल्ड कप के अलावा तो आप देखेंगे जॉर्डन हैज़ गॉन फॉर अबाउट 9 और 10 रन पर ओवर स्टार्ट में। अभी ये पिच भी थोड़ी सी ना थोड़ी सपोर्टिव मूविंग अराउंड, जहाँ पे उनका क्रिस वॉक्स आ जाता है, ही इज़ वन जो नए बॉल का सबसे अच्छा बॉलर है इस वक्त इंग्लैंड के पास। बट अगेन डिपेंडिंग ऑन, हमने ये देखा है कि व्हेन इट कम्स टू सेकंड इनिंग्स वी हार्डली सी एनी स्विंग
We have hardly seen the ball seam. Do anything. So bowling is something that you can target for England. England की बैटिंग की जिस तरह मिसबा भाई ने बात की कि 2 ऊपर से आउट करें. So maybe England is a kind of a team which they will score 170 plus or they will get out on 120. Your point is that you can target their bowling. Bowling stats देखते हैं इस वर्ल्ड कप के इंग्लैंड के, सॉरी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है. This is the England bowling in the T20 World Cup this year, this 2021 World Cup. वो वहाँ वाली बात ना कि अभी इनके ऊपर प्रेशर नहीं बिल्ड हुआ है. They've been very, there is no doubt that they've been very very disciplined. Economy rate is excellent. अभी ये टेस्ट नहीं हुआ इनका. लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, इनके जो कमेंटेटर्स भी बात कर रहे हैं इधर उधर भी, मुझे I'm hearing they all talking about Mark Wood. Where is Mark Wood? Why is he not fit yet? Biकॉज इनको भी मालूम है कि इनकी इस बॉलिंग लाइनअप में येस देर इज वेरिएशन, देर इज क्वालिटी है इसमें, बट दे वांट अ टेयर अवे फास्ट. Who would they play instead of Mark Wood? देखिए मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मार्क वुड आ गया तो दे माइट मेक क्रिस वॉक्स टू सिट डाउन, और इफ नॉट देन टाई मिल्स. Time Mills got 7 wickets. He's the But highest the wicket problem taker is for कि them. देखिए उनकी ये चीज England think differently. He is somebody who bowls 150 clicks, Mark Wood. Yeah. He is somebody who can bowl with the new ball. He is somebody who can get the reverse swing. He is somebody who can get that length right. Especially it is very hard. और वो हमने अपने paces में देखा when they are bowling 145 plus. पाकिस्तान टीम की example सबसे अच्छी है. When they come in and they are hitting the lengths, it's very difficult for any batsman in the world कि वो in this part of the world कि वो score कर सके उस lengths को. So Mark would be their first preference, and they always play like this. They are not worried about के टाई मिल्स अच्छी बॉलिंग कर रहा है, क्रिस वॉक्स अच्छी बॉलिंग कर रहा है. दे नो कि उनकी टीम क्या है. इंग्लैंड तो लड़का नाराज हो जाता. एग्जैक्टली, इंग्लैंड ऑलवेज गो फॉर देयर मैच विनर्स. इंग्लैंड के अगर आप प्लेयर्स देखें, दे आर मैच विनर्स, दे आर इम्पैक्ट प्लेयर. एंड मार्क वुड इज वन ऑफ द गाइज जिसको बैटिंग करते हुए दुनिया का कोई भी बैट्समैन घबराता है. बिकॉज रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह उसने अपने आप पे वर्कआउट किया, एंड हिज एवरेज बॉलिंग इज 145 प्लस. Wow. So you know he bowls 150 regularly. Okay, Wasim, you haven't answered this question. Which one? You've asked everybody, what do you think is the weakness of England? What do you think is the England weakness that we can exploit? मैंने पता होता कि मैंने कोलों पूछा था. No, I'm just kidding. I think they cover it up beautifully. कि उन्होंने second bowling नहीं की, और but again, as far as their performance so far, we have seen in 2-3 games they played, they batted first. So under pressure देखते हैं क्या होता है. Under मिसबा ने भी ठीक कहा कि knockout में it's a different mindset because you don't have the second chances. I mean, they're looking really good, a complete side. They bat deep. They're number 10 at least. आदिल रशीद की 10 सेंचुरी ओवरऑल तो सीधी सी बात है जो मैंने पहले की कि रिसोर्सेज वाइज दे आर द टॉप टीम, बाकी टीमों से बहुत ज़्यादा. बट अगेन बात वही है कि दे हैवंट सीन एनी प्रेशर येट. तो जो टीमें प्रेशर से गुजर के आती हैं ना ऐसे टूर्नामेंट में, और वो आगे पहुंचती हैं, आप देखें मोस्टली इन बड़े टूर्नामेंट्स में, वो टीमें फिर उनके लिए बड़े मैचों में आके प्रेशर को हैंडल करना थोड़ा आसान है. यू सेइंग इंडिया इज क्वालिफाइंग. देखिए बात ये कि अगर पहुंच जाए, well played, वकार on the front foot there to Misbah. मैंने ये कहा कि अगर वो पहुंच जाए, अगर इंग्लैंड की, आई टेल यू समथिंग, इंग्लैंड को अगर आप रिसेंटली देखें, इंग्लैंड जब भी मैच हारी है मोस्टली बैटिंग फर्स्ट पे हारी है. क्योंकि दे हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट इवन some team which will score 170 180 plus, हम कर लेंगे. they have that thing in us के हम कर लेंगे. और चेजिंग में they have lost very less, I think. हमारे खिलाफ भी जो हमने उनसे मैनचेस्टर में हम खेले थे, सो हमने उनको पहले बॉलिंग की थी, और वो बारिश की वजह से जो था वो मैच जो था वो थोड़ा सा लेकिन हमने पहले बैटिंग में जीता था मैच. हाँ नहीं, जब हमने पहले मैच में बॉलिंग करके उनको हम लोगों ने कोई तकरीबन 100 and something पे आउट कर दिया था, और बड़ी जल्दी आउट कर दिया था. ऊपर से 2 आउट किए, इमाद ने अच्छी बॉलिंग की, फिर शाहीन ने आउट किए. सो यू नो we trapped them on 133 something in that game. Yeah. और पाकिस्तान is one team if they gonna play against Pakistan, because recently हम लोगों ने उनके साथ सीरीज खेले, but trust me, against Pakistan they rate Pakistan team the best T20 team because they know the resources Pakistan team has. Well, that's well said there. बात करते हैं अब जो मैच है आज शारजाह से आपकी खिदमत में. इंग्लैंड बामुकाबला श्रीलंका हम लेकर आ रहे हैं.
और ज़रा देखते हैं कि इन दोनों टीमों का आपस में हेड टू हेड की क्या पोजीशन है, इनके जो टाकरे आपस में हुए हैं उसकी क्या सिचुएशन है। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर हेड टू हेड T20s के मुकाबले, जिसमें वाज़ेह तौर पे इंग्लैंड को बर्तरी हासिल है। मैं यही कहने वाला था कि उन्होंने गरीबा दी भी गल कर ली है श्रीलंका दी। आई मीन दे नॉट दैट इजी, ठीक है। और शारजा, लेट्स नॉट फॉरगेट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि वेन्यू को भी देखा जाए और श्रीलंका यू नो इट्स नॉट अ बैड साइड, ठीक है। T20 इज ऐसी गेम है कि आप यू कैन लूज एनी टाइम। T20 वर्ल्ड कप के इनका किसी ने सोचा था कि इंडिया इस सिचुएशन में होगी। सो दीस थिंग डू हैपन इन वर्ल्ड कप। सो यस, इंग्लैंड इज इन ग्रेट फॉर्म, लेकिन श्रीलंका में भी गेम फॉर श्रीलंका। They have to win this game. And if they win the toss, they'll definitely would like to bat first, I reckon. Not sure. Ball first. Ball first. I think they will ball first. Ball Yeah. first because Against of the England, view. I think they will, you might see a twist in the tail. आज कोई अभी इस पूरे उसमें आप देखें कि इस पूल इस तरफ कुछ न कुछ होगा ज़रूर, क्योंकि सारी टीमें अभी तक जो लाइन में हैं वो एक जैसी हैं। बिल्कुल ऐसे। इंग्लैंड का एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि T20s के अंदर ये हर 100 गेंदों में 19 दफ़ा बाउंड्री मारते हैं। That's one of the highest hitting percentage that they have. England, 19.19%. So every 100 balls. So they've hit 543 boundaries in the last 2 years in T20I format. One of the highest. उसकी वजह यह है कि उनके जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे जो है वो they can clear the boundary really well. They have that confidence. They are stroke players. They go after you. उस दिन हमने देखा कि Stark, any other team or any other batsman going after Stark, they will think about it. Stark को रोक लो, single ले लो, they have plans कि ठीक है, he's attacking, अगर वो off stump के बाहर करे तो ठीक है, otherwise he's dangerous and he's bowling into the wicket. As soon as Stark बीच में आया है और आगे से कोशिश किया है, Butler didn't hesitate. उसने कहा ठीक है, you are in my zone, I'm gonna go. बेशक मैं आउट हो जाऊँ। छोटे नहीं, उसने बड़े छक्के। हाँ, तो you know उनका ये है कि उनके specific areas हैं where they are strong. And they don't care who is bowling. They're going to go for it. And England is also a very good fielding side too. Exactly. Plus the resources they have. अगर आप देखें लिविंगस्टन जिस तरह का प्लेयर वो उनको मिला है, प्लस जो बॉलिंग में वो उनके लिए कर रहा है, ही इज बॉलिंग 2-3 overs रेगुलरली ना T20। When it comes to a right hander वो लेग स्पिन शुरू कर देता है, अगर लेफ्टी आता है तो वो उसको ऑफ स्पिन शुरू कर देता है। सो यू नो दे हैव रिसोर्सेज। राशिद हो गया, ये देखे बॉलिंग अगर आप देखें ये लेग ब्रेक्स यहाँ पे कर रही है राइट हैंडर्स को, ये ऑफ ब्रेक करना शुरू कर दिया। और फिर ये विकेट्स ऐसी हैं कि लिविंगस्टन भी इतना इजी बॉलर नहीं है, प्रॉब्ली कहीं और होता, दुनिया में कहीं और खेल रहे होते, इंग्लैंड में खेल रहे होते। अभी ही इज कंसिस्टेंट, ही इज लैंडिंग द बॉल इन द राइट एरिया और थोड़ा सा वो एयर भी दे रहा है, स्पिन करने जा रहा है, मतलब वो डर के बॉलिंग नहीं कर रहा जो मैंने कुछ स्पिनर्स को देखा है। ही प्लेस फॉर लंकाशायर, मैनचेस्टर, और मैनचेस्टर में हमें पता है कि जैसे ही थोड़ा सा सीजन थोड़ा सा जाता है, जून जुलाई अगस्त में विकेट्स थोड़ी सी स्लो होना शुरू हो जाती हैं, एंड ही इज़ द कैप्टन प्रोबेबली देयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये हाँ तकरीबन और वहाँ पे ही बॉल्स रेगुलरली, सो यू नो ही हैज दैट आइडिया बिकॉज वो T20 कॉम्पिटिशंस में बॉलिंग करता है। जैसे कप्तान के लिए जो तकरीबन होता है ना, मतलब है वो कुछ भी नहीं है बेचारा। बिल्कुल जी, समझ तो आप गए होंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से मैं समझ गया। दोनों तरफ से फायर आ रहा है। तो एक बात और भी इनकी बड़ी, शारजा की जो ग्राउंड है इसमें इनका बड़ा एक हिस्टोरिकल मेमोरेबल विन है अगेंस्ट पाकिस्तान। 2015 में T20I खेला था उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान के साथ, और वो टाई हुआ था और फिर सुपर ओवर में इंग्लैंड ने जीता था। दिस वाज इन 2015 एंड इट वाज अ टाई इन सुपर ओवर में जो है वो फिर पाकिस्तान स्कोर्ड ओनली 3 रन्स इन द सुपर ओवर। उस वक्त हमारे पास वो सुपर ओवर का भी मेरा ख्याल है कैपेसिटी और कैपेबिलिटी सही तरीके से डेवलप। दैट वाज जॉर्डन, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। आई स्टिल रिमेंबर शाहिद आफरीदी, उमर अकमल, और उसके बाद आई थिंक देयर वाज वन मोर बैट्समैन एंड ही केप्ट ऑन बॉलिंग दोस यॉर्कर्स and he didn't let them score runs. Yeah. So, well, how is it that Chris Jordan can bowl such good Yorkers and in such good control, and especially with the semi-new ball, जी, जो कि ना normal swing होता है ना reverse swing होता है, so that's a special kind of art. Is he doing some different kind of देखो training, यॉर्कर में practice? आपको जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है। अंडरस्टैंड करें, जो हमारे क्रिकेट व्यूज़ भी हैं, क्रिकेट एंजॉय करते हैं, बड़ा इनको पता है। सो व्हेन दे से कि हर बॉल यॉर्कर क्यों नहीं करता, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू बॉल यॉर्कर ऑन एवरी डिलीवरी।
यू नो बाउंसर आप भाग के आते हो, हल्का सा पीछे मारते हो, बॉल ऊपर चला जाता है। इसी लेंथ बॉल पे भी जोर लगाना पड़ता है। यॉर्कर के लिए आपको पूरी बॉडी मारनी पड़ती है, पूरा जोर लगाना पड़ता है, हाई आर्म एक्शन करना पड़ता है ताकि बॉल बल्ले के नीचे से गुजरे। और आजकल की इस T20 फॉर्मेट में अगर आपको यॉर्कर लाइन पे नहीं गिरा, so that's in your zone where you can hit at a मेरा एक batsman. क्वेश्चन आपसे भी और वकार भाई से भी है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग आपको देखते हुए बड़े हुए हैं, आप लोगों की बॉलिंग और Gotta be careful. यॉर्कर जब आप लोग करते थे, आप लोगों को क्यों लगता है कि आजकल यॉर्कर्स क्यों कम होता है? बिकॉज यू गाइस स्टिल बिलीव इन बॉलिंग दोज यॉर्कर्स। और अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि यॉर्कर्स की जो टेक्निक आप लोगों की थी, ऑब्वियसली हर एक का अपना होता है फ्रेम ऑफ माइंड के किस तरीके से करना है। Sure. व्हाट यू डिड यू थिंक, और उसमें आप लोगों का एक्शन वो कितना ज़रूरी है? बिकॉज बैलेंस ऑन द क्रीज इज़ द बेस्ट थिंग टू हैव, फिर एवरीथिंग इज़ गुड। लेकिन आप लोग इतने मतलब करते थे यॉर्कर्स, व्हाट वर यू थिंकिंग, और क्या सोच के और किस तरह एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी कैसे थी? You were saying something? मैं एक चीज़ कहूँगा, ज़ाहिर है आप लोगों को ज़्यादा पता है, और आप जो मैंने, क्योंकि मैंने आप लोगों को भी देखा है उस टाइम पे जब टीम में आया हूँ 2001 में, 2001 में, और अभी भी मैंने बॉलर्स की रूटीन्स देखी हैं। जो डिफरेंस मुझे नज़र आता है कि उस टाइम आप लोग बॉलिंग करने के बाद एक नॉर्मल आपकी ये रूटीन थी कि 3 से 4 ओवर्स एवरी डे गो इन द सेंटर, विकेट लगा के आपने यॉर्कर्स के करने। Yeah. आजकल भी करते हैं बॉलर्स, लेकिन शायद उतने नहीं करते। टोटल 5-6 ओवर करेंगे, और वो भी हो सकता है हर रोज़ ना करें। आपने वहाँ पर लेंथ बॉलिंग नॉर्मल नए बॉल से सेमी ने उसे कर ली, लेकिन एवरी डे शायद उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से आप लोग करते थे। मुझे ये लगता है। वो बात ठीक है, प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, लेकिन एग्जीक्यूट करना एट दैट टाइम। मैं बॉलर हाँ, हूँ तो ना, आजकल देखो माइंडसेट बदल गया हुआ है बॉलर्स का। हम विकी उस दिन बात कर रहा था कि हम कहते थे कि यार तू घंटा बॉलिंग करी, और अब आजकल होता है तू 8 गेंदा कर लेना, 24 गेंदा कर लेना। एम आई राइट? सो एक तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है, और प्लस हमने बड़ी क्रिकेट में 4 दिन की क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में भी यॉर्कर किए हैं, और यॉर्कर के लिए जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली लगाना अच्छा, पड़ता है। एक मेरा चीज़ और। एक्शन कितना ज़रूरी है उसमें, Action, आपका देखो, स्मूथ होना। you- बिकॉज you what I have learned during my cricket about 19-20 years, जो भी थोड़ी बहुत खेली है पाकिस्तान से, मैं अपना एक्शन चेंज कर लेता था यॉर्कर के लिए। मैं कोशिश करता था कि मेरा बाजू ऊपर से आए, हाई आर्म, ताकि वो ऊपर से बॉल गिरेगा तो यू नो डिप करेगा यॉर्कर की तरफ। सो ये मैं कई दफ़ा तो शुरू में देखा होगा, मैं ऐसे ऐसे आता था। आई वॉज इमिटेटिंग इन माई माइंड, आई वॉज इमिटेटिंग जूल गार्नर। जब मैं रिप्ले देखता था तो मेरा एक्शन एग्जैक्टली वही था जो मेरा था, बट इन माई माइंड इट वॉजेंट। इन माई माइंड आई थॉट आई एम बॉलिंग आई एम ट्राइंग टू इमिटेट द बेस्ट यॉर्कर बॉलर इन द वर्ल्ड एट द टाइम, दैट वाज जूल गार्नर, एंड दैट हेल्प मी। फिर इवेंचुअली फिर आइडिया हो गया कि कहाँ पे मैंने यॉर्कर करना है, किस बैट्समैन को करना है, और उसके लिए फील्ड क्या रखनी है। सो वसीम भाई, जिस तरह भी आपने कहा कि आप अपना हाई आर्म एक्शन कर लेते थे कि Yeah. मैं ऊपर से करूं, उसमें जब आप रनिंग करके आ रहे थे, क्योंकि आपका एक्शन ये था कि मतलब यूं क्रॉस था और उसके बाद आप ऐसे करते थे हाई आर्म एक्शन। डू यू यूज टू कीप योर सेल्फ और गिव योर सेल्फ एन एक्स्ट्रा बिट, लाइक क्रीज पे थोड़ा सा हाई रहना, थोड़ा सा टाइम ज्यादा कोशिश देना, ये होती थी कि मैं आप जंप बस करूं। फ्लो में चले जाते थे? नहीं, कोशिश होती थी मैं जंप करूं, बट होती नहीं थी जंप, मेरे माइंड में होती थी। तो उससे एक एक्यूरेसी आ जाती थी कि मैं जंप करूं, हाई आर्म करूं, ताकि वो पूरा ऊपर से आके विकेटों के नीचे जाए। वो डिपेंड करता है नया गेंद है कि स्विंग है, या माइंड के साथ जो चीज़ें आप खेलते हो। आपका क्या टेक्निक थी विकी? वसीम भाई, आई थिंक एक प्रोग्राम करेंगे इस पे हम इंशाल्लाह। पूरा सेगमेंट प्रोग्राम पूरा होगा कि जिस पे आपको रिवर्स स्विंग के बारे में भी बताएंगे, वसीम भाई भी बताएंगे, एंड आई विल टॉक अबाउट इट आल्सो। लेकिन वी वर 2 डिफरेंट बॉलर्स, यू नो। लेफ्ट आर्म एंगल इज़ अ डिफरेंट एंगल, यू नो, कमिंग इस एंगल से बैट्समैन को आ रहा है बॉल, और इस एंगल से आ रहा है। प्रॉबली अगर मैं वसीम भाई की तरह हाई आर्म होता, इस एंगल से आता, तो प्रॉबली ईजी होता बैट्समैन के लिए, क्योंकि हाई आर्म से इस एंगल से सामने से आप यू लुकिंग एट द बॉल, मिसबा प्रॉब्ली विल टेल यू कि जब आप सामने दोनों से नज़र आएगा, दोनों आंखों से आप सामने देख रहे हो ना, तो इट्स ईजियर टू टैकल विद समथिंग कमिंग फ्रॉम हेयर। बट इफ समथिंग कमिंग फ्रॉम हेयर, यू हैव टू open your body and then deal with that angle also. Or then Wasim bhai, of course, with the pace 145 plus, you know, swinging the ball both ways, it's very difficult.
मेरा ये था कि आई कैन नॉट आई वाज मेरा एक तो हाई आर्म था ही नहीं, स्पेशली हाई आर्म शुरू में था कोई 2-1 साल 3 साल, लेकिन उसके बाद बैक इंजरी 92 में हुई, तो उसके बाद वो मेरा शोल्डर गिरा, बॉडी ने खुद ही उसको शोल्ड करके अपना बना लिया। लेकिन ये है कि मैंने ये लर्न कर लिया कि ओके, मैं जितना आर्म ड्रॉप करूंगा मेरा उतना यॉर्कर अच्छा गिरेगा। That normal swing or reverse swing? नो, रिवर्स स्विंग। Reverse swing. नॉर्मल स्विंग पे तो मैं कोशिश करता था, आई वाज मोर फोकस ऑन द रेस्ट, कि रेस्ट मेरी सीधी ड्रॉप होनी चाहिए ताकि मैं बॉल की सीम को ट्रेवल करा सकूं। लेकिन जो रिवर्स स्विंग थी, देन व्हाट आई डिड कि मुझे बिल्कुल करीब आना पड़ेगा विकेटों के, एंड देन आई यूज्ड टू थ्रो द बॉल लाइक बॉल द बॉल more toward outside the off stump, maybe 5th stump, 6th stump sometimes. Maybe first slip. Yeah. Aim the first slip. Yeah, or You see, lot. reverse swing में विकी ये भी हम सीखे थे कि जब रिवर्स स्विंग हो रही होती है, इवन अगर इतनी सी भी हो रही है, अगर आपने ऑफ स्टंप पे गेंद मारना है तो आपको फर्स्ट स्लिप का एम करना पड़ेगा। अगर आप ऑफ स्टंप का एम करोगे तो वो मिडिल लेग पे खत्म होगी। Yeah. All right, great stuff there about Yorkers. मगर इस वक्त लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। देखते रहिए A Sports and 10 Sports. We'll be back in the pavilion momentarily. वेलकम बैक टू द पवेलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, हमारी खुसूसी कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप राह रास्त मुत्तहिदा अरब अमीरात से। और आज मैच है शारजा में, जहां पर इंग्लैंड का मुकाबला होगा श्रीलंका से। और अब से कुछ लम्हात बाद हम आपको लेकर चलेंगे शारजा स्टेडियम, जहां पे पिच और मौसम के हवाले से हमें रिपोर्ट मिलेगी। मगर उससे पहले हम ब्रेक पे जाने से पहले यॉर्कर्स की बात कर रहे थे, एंड आई थिंक वकार यू वांटेड टू ऐड समथिंग इन द एक और यॉर्कर मारना चाह रहे हैं। एक और यॉर्कर मारते होते मौके का फायदा उठाए, एक और यॉर्कर नहीं, आई जस्ट वांटेड टू फिनिश ऑन इट कि जी यॉर्कर जो है ना डिफरेंट, जैसे वसीम भाई का था ना, वसीम भाई हाई आर्म थे, तो इनका एंगल की वजह से वो हाई आर्म था, इट वाज लॉट मोर इफेक्टिव बिकॉज अंदर आता था, लेट आता था, एंड वो प्रॉब्लम क्रिएट करता था। राइट आर्म फास्ट बॉलर जितना, जैसे लसित मलिंगा हो गया, जितना हाई आर्म होता है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, बिकॉज व्हाट हैपेंस द बॉल है इधर। हां जी, एम्ब्रोज का आसान, लेकिन वसीम भाई वो ना इफेक्टिव तो नहीं, इफेक्टिव तो सारे होते हैं, इफेक्टिव सारे होते हैं, ये नहीं कि इफेक्टिव नहीं होते, लेकिन ये उतने इफेक्टिव नहीं होते। जो मोस्ट इफेक्टिव बॉलर्स जो रिवर्स स्विंग पे हैं, नहीं आई कैन एक्सप्लेन इट। go there, you have to stand up और बॉडी के एक्शन के साथ। नो, माय बॉडी इज नॉट, राम ना बह, ठीक है ना। एम उठाई जा रहे हैं। सो होता क्या है कि बेसिकली वसीम भाई का जो मैं बता रहा हूँ ना, वसीम भाई सीधा छोड़ते थे, तो इट यूज्ड टू रिवर्स स्विंग विद दैट एंगल, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन मेरा क्या होता था, मैं आई यूज्ड टू टिल्ट माय रिस्ट अ लिटिल बिट। जब रिस्ट आप थोड़ी सी शाइनी साइड अंदर है ना, नहीं शाइनी साइड ये है अंदर, या हाँ, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग द बॉल बैक इनटू द राइट हैंडर को। एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक श्योर कि मैं बिल्कुल विकेटों के साथ, अंपायर्स के बिल्कुल करीब आके, एंड देन आई यूज्ड टू पुश द बॉल इस तरह, बाहर से इस तरह, इस एंगल से, नॉट दिस एंगल, दिस एंगल, लिटिल बिट टिल्ट से क्या होता था, वो स्विंग नहीं होता था, वो सीधा जाता था, एंड में जाके स्विंग भी नहीं होता था, इट यूज्ड टू डिप, स्विंग एज वेल एज, एंड इट यूज्ड टू डिप। वो जो डिप है वो है अराउंड अबाउट 17 मीटर्स पे, ये मुझे नहीं मालूम है ये क्यों है, कैसे है, वजह साइंटिफिक रीजन नहीं मुझे मालूम है, लेकिन ओवर द ईयर्स कर करके मुझे पता चल गया था, आपको भी ऑफ कोर्स पता था, वहाब को भी प्रॉब्लम, व्हेन ही इज ऑन सॉन्ग ही नोज कि वेयर एग्जैक्टली टू बॉल। तो उससे क्या होता है कि आपको पता होता है कि ये 17 या 18 में भी यार्ड पे जाके एक बैट्समैन ने कमिट कर लिया होता है उसको, बॉल को वो 15वें 14वें 15वें मीटर पे वो कमिट कर गया होता है कि मैंने कहाँ खेलना है। एंड इफ द बॉल डिप्स आफ्टर दैट इज वेयर इट्स गोना हिट योर टो। That's why they call me toe crusher. The toe breaker, the toe crusher. One more thing, हम लोगों ने ये देखा कि आप लोगों का जो बॉल था वो लेट स्विंग होता था, रिवर्स, जिस डिप की बात करो, डिप करो, व्हाई नॉट, अभी भी जो बॉलर्स हैं वो रिवर्स करते हैं, बट दे डोंट गेट दैट डिप, सडन डिप एकदम से। आजकल के बॉलर ना, इसका जवाब खुद ही दे दो भाई। मेरा होता है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, वो इसीलिए बिकॉज यू उनसे पूछ रहा हूँ, बिकॉज आपका क्यों होता है, व्हाई डू यू थिंक इट हैपेंस? ये स्लिंगी एक्शन है, वो जो मैंने एक्सप्लेन किया, मेरा काफी स्लिंगी, आई बॉल रियली दैट उसमें, और फिर जब वो मैं पुश करता हूँ मेरी रिस्ट जो है दैट गिव्स मी दैट प्रॉब्लम। लेकिन जिनकी रिस्ट सीधी है, जिससे वका भाई आपकी रिस्ट सीधी थी, बेशक आपका एक्शन थोड़ा स्लिंगी है या वसीम भाई ऊपर से करते हैं, स्टिल वी हैव सीन कि बॉल ऐसे जा रहा है और एकदम से अंदर घुस जाता है।
व्हाई नॉट मैं तो जब रिवर्स जो करता है है व्हाई नॉट आज भी मतलब लोग रिवर्स करते हैं, इवन हम इंटरनेशनल बट बॉलर्स आज मैंने मोस्टली देखा है नॉट पाकिस्तानी बॉलर्स के अलावा मोस्टली इंग्लैंड में देखा है सिर्फ मैंने कि दोनों तरह रिवर्स करते हैं। बाकी मोस्टली बॉलर्स जो मैंने देखे हैं इवन ऑस्ट्रेलियन एक स्विंग करते हैं। मिचेल स्टार्क अगर रिवर्स होगा राउंड द विकेट आएगा और सिर्फ राइट हैंड को बाहर निकालेगा निकालता है। और And that's a very ओवर द dangerous- विकेट सिर्फ लेफ्ट हैंड को अंदर लाएगा। सो प्रॉब्ली वसीम भाई एज ए बैट्समैन जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ जो बॉलर हैं वो यहाँ से ऊपर से जिनका हाथ आता है, मुझे एज ए बैट्समैन लगता है कि जैसे एंडरसन करता है नॉर्मली, उसका एक्शन बड़ा क्लीन एक्शन, स्लिंगी नहीं है। वो फुल करता है तो आसानी लगती है खेलते हुए, पेस नहीं है। जिसका लेकिन जिसका एक्शन बिल्कुल ऊपर से जो डिलीवर करता है वो जब लेंथ से करता है रिवर्स, और वो ये करता है इंग्लैंड में दोनों तरफ जो आप करते हैं, देन ही बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इवन शारजा में आप देखेंगे यहाँ पे जब कर रहा इंडिया में था उसने इंडिया को बड़ा तंग किया रिवर्स जी, से। और जो स्लिंगी एक्शन जैसे वकार भाई का, तो वो मलिंगा था, वो यहाँ से जो करता है उसका फुलर बॉल यॉर्कर या बिल्कुल फुलर लेंथ वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो जो डिप आता है और एकदम एंगल से यूँ जाते हुए बॉल आखिरी वो 17 मीटर्स व्हेन यू आर अबाउट टू प्ले, कमिटेड टू वहाँ अगर से हम क्या मुड़ता बात है। कर रहे हैं हम बात करें यॉर्कर्स की कि यॉर्कर्स लेट स्विंग कैसे होते हैं और बैट्समैन कैसे negotiate करते यॉर्कर हैं। 15 मिनट पहले बात हाँ लेकिन और मैं जो हूँ मैं देख रहा हूँ कि आगे अपने क्या कर रहे हैं, आगे तभी मैं करना है हिसाब किताब। Fakar was busy. ने Fakar बिल्कुल was busy in tweeting. I was tweeting. और If I tweet, you'll find और it ये out. गोल गोल हो गया एक दफा पे, तकरीबन गोल हो गया, पूरा गोल नहीं हुआ। नहीं, ये आप लोगों का तकरीबन दिल है। भर गया, बातें हो गई सारी की सारी आप लोगों की? नहीं, नहीं, जबरदस्त। अभी तो है। आइए दोस्तों आपको शारजा लेकर चलते हैं जहां पर पिच और मौसम के हालात आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। You have the pitch and the weather report out of Sharjah. वेदर के बारे में तो कोई खास बताया नहीं, गर्मी है, ठंड है, क्या है क्या नहीं है। गेस कर ले शारजा में क्या हो सकता है मौसम अच्छा हो गया। फर्स्ट वीक अच्छा लिटिल मौसम है, प्लेजेंट अच्छा लाइक हो- कराची बहुत अच्छा आई हो थिंक गया। मोर और लेस लिटिल कूलर देन कराची इन द इवनिंग बिकॉज़ बर्फ दिस इज पै एन रही इवनिंग गेम। आप दुबई में रहते हैं? बर्फ जी। पै रही है। शारजा कितना दूर है? 45 minutes no drive. when not at But 3 o'clock in six- the afternoon No, not at 3 o'clock in the It's afternoon. about But I 2 say in an hours open drive, night. man. But in terms of distance, about border चूंकि लगता है दुबई का और शारजा border is detached. So you are out of the city into Sharjah. You और don't feel कितने it. साल से रह रहे हैं माशाल्लाह? 18-19 साल से। क्यों? That was आपकी वेदर रिपोर्ट ठीक है। very random question वो एक्चुअली कहीं ढूंढ रहा था कि कुछ कोई गोल मिल जाए बीच में करने के लिए। नहीं, हो जाता है, हो जाता है। आप पूछ खैर, रहे कि खैर, हो वेदर जाता है। रिपोर्ट तो बताई नहीं, मैंने कहा आप शारजा में 19 साल से दुबई में रहते हैं, आप खुद बता दें। ड्रोन शॉट हमारे पास मौजूद है दोस्तों। वाह, इस पर तुझे इस पे घास तो नजर नहीं आ रही साइड पे है ना, पिच के साइड पे। साइड पे क्या पे pitch? पिच पे क्या है भाई ये ये बताइए। पैचेस देख रहा है मुझे नहीं लग रहा कि इट्स अ बैटिंग डेक आई मीन It's नेवर a अ बैटिंग belter. डेक जो पिच रिपोर्ट बताई है उसमें तो उसने कहा है कि Belter बड़ी है। जबरदस्त बेल्टर है तकरीबन, और एक्चुअली शीन मुझे नजर समझ आ में नहीं रही आई, वो उसने पिच रिपोर्ट पे उसने कहा है, पहले उसने पिच रिपोर्ट का इट्स एन एब्सोल्यूट बेल्टर, यू नो, बैटिंग दिस दैट, द ग्राउंडसमैन टेल्स मी दैट दे स्प्रिंकल्ड सम वाटर हियर इन द इवनिंग एंड सो दे रियली रोल्ड इट अप नाइसली एंड ऑल दैट, बट व्हेन इन द लास्ट मैच दे वर बॉलिंग एंड द बॉल वाज नॉट कमिंग ऑन टू द बैट एंड द बॉल वाज स्टेइंग लो, मैं कह फिर बेल्टर किस तरह है, एंड द बॉल वाज स्टेइंग लो, देयर इज प्लेंटी इन द पिच फॉर द बॉलर्स एज वेल, बट इट्स अ बेल्टर। सेफ बेट है ना, सब कुछ कह दो। तो फिर ये इस किस्म की पिच रिपोर्ट करने से बेहतर है बंदा नहीं करे पिच रिपोर्ट। या आई सपोज सो I mean, I दिस इज think आई सपोज आईसीसी जो भी प्रोड्यूस कर रहा है ये उनके नक्शे कदम इज द वर्ड जी जी बिल्कुल है। नो नक्शे कदम इज फॉलोइंग इट्स समथिंग एल्स आर दे फॉलोइंग द रूल्स उनकी बताई हुई बातों के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। वो कार अगर आप पिच रिपोर्ट करते तो आप कैसी पिच रिपोर्ट करते थे? प्रॉब्लली ऐसी करता जो उन्होंने की है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल उनको कुछ ज्यादा समझ आई है, और समझ किसी को आ भी नहीं रही मैं है। तो भूल ही जाता पहले तो बाउंड्री याद करो ना, I know. 79 89 इसीलिए तो उन्होंने 25 इसी 65 में उन्होंने दो बंदे रखे हैं। हाँ एक तक हमें याद करना एक याद रखता है कि जो डायमेंशंस कितनी है, और दूसरा थोड़ा बहुत पिच का बताता है। तो पिच अच्छी होगी। आई डोंट थिंक इट्स गोना बी अ रियली बैड पिच। आई थिंक इंग्लैंड विल बी won't be टेस्टेड ऑन an दैट। easy pitch either इंग्लैंड विल बी टेस्टेड ऑन दैट। देखिए, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंग्लैंड अभी तक यहाँ नहीं खेला है, श्रीलंका ने यहाँ खेल के हटी है, श्रीलंका यहाँ क्वालिफायर भी खेली है। सो श्रीलंका को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज जरूर होगा। ये नहीं कि वो मैच में वो उनको बहुत ही पंगा डाल देंगे, लेकिन ये है कि श्रीलंका को एडवांटेज जरूर होगा। देखिए वकार भाई, एक चीज़ जो डिफरेंट नज़र आ रही है इस दफ़ा, शारजा की पिच
अक्सर ऐसी होती है कि उस पर आपको शीन नज़र आती है। अभी भी जो ड्रोन से भी जो चीज़ हमें देखी है वो यही है कि रफनेस थोड़ी सी नज़र आ रही है, पिच उस तरीके से वो शीन नज़र नहीं आ रही। आई डोंट नो क्यों पूरे जितने भी मैचेस थे वो अजीब सी उसकी लुक आ रही है। Probably the pitches are tired now. I mean they had so many games on this and the club cricket और फिर अभी क्वालिफायर्स भी इधर हुए हैं, अब वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वो सॉइल कितनी एक जान में होएगी आपको जो वो भी बात कर रहा था ना, इट लुक्स लाइक नॉर्मली जब हम खेलते रहे हैं ऐसे ही लगता है कि जैसे कंक्रीट है। हाँ। बिल्कुल ऐसे रॉक हार्ड होती है और बिल्कुल जुड़ी हुई होती है और शाइन होती है ऊपर, वो नज़र नहीं आ रही। वो बिल्कुल अब आपको एक डिफरेंट पिच नज़र आती है। लुक से ही आपको लगता है कि ये बड़ी जो है ना इस पे बैटिंग मुश्किल होगी, बल्ले बॉल नहीं आएगा और इंग्लैंड के लिए मेरे ख्याल में इतना मैटर नहीं करेगा। Pitch is tired. We are tired. You know, but it's just going on and on and on. No, you're not are tired. I am tired. I guess I am. We've got Chris Wokes with us. Let's listen in. There you have Chris Wokes there, looking good and all set. This will definitely be a challenge, maybe a different challenge for England. Not a very difficult one, but a challenge indeed, because ये पहली दफा खेलेंगे शारजा में। इस मैच में एक और टीम भी खेल रही है श्रीलंका, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं ना, उसके बारे में तो आप लोग तैयारी कर लें, आप ब्रेक ले लें दोस्तों, ताकि ये थोड़ी तैयारी कर लें। आप देख रहे हैं द पेविलियन ऑन ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, and in the pavilion with me Pakistani superstars and legends Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbah ul Haq and Wahab Riaz. We are talking about the game in Sharjah. England बा मुकाबला श्रीलंका। अब से कुछ देर बाद हम टॉस की तरफ जाएंगे, उससे पहले हमने आपको पिच और वेदर रिपोर्ट दी। सिंप्लीफाई करते हैं पिच और वेदर रिपोर्ट, और वो ये है कि लो बाउंस, शॉर्ट बाउंड्रीज, हॉट वेदर, दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू गो डाउन इन शारजा। बात कर रहे थे श्रीलंका की टीम के बारे में, श्रीलंकन स्क्वाड। लेट्स स्टार्ट विद ये जरा स्क्वाड लेकर आए जनाब, टीम लेकर आए स्क्रीन के ऊपर, जो श्रीलंका की टीम है, पहले उसके ऊपर गुफ्तगू हम कर रहे हैं। तो दोस्तों श्रीलंका की टीम के बारे में हम बात करते हैं। वकार, टेक अस थ्रू द श्रीलंकन टीम। Where is the team? It's going to come. You should know. Here's the team. I mean, these are 15 here. Yeah, let's So I go thought through we them. I thought we were going to talk about the 11. 11 तो आप इसमें से आपके दिमाग में कौन से 11 है, वो तो बाद में आएंगे टॉस के बाद। I don't know what they're going to pick. They lost 2 games, so they're probably still thinking. So what are they going to pick? I mean, they've got a good unit. They've got, मैंने जो pace bowlers भी देखे हैं इनके, they're pretty good. They've got couple of आप मुझे फंसाना चाह रहे हैं इसमें? इस उम्र में मैं फंसा के क्या करूँगा? खुदा का वास्ता। देखिए मेरे ख्याल में जब टीम आएगी ना, तो आई थिंक we'll talk about that. But generically मैं ये बात करूँगा कि they've got a decent side. They have not won, but they have got potential. Potentially they're pretty good. थोड़ा बैटिंग मिडिल ऑर्डर में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। कई दफ़ा राजा पक्षा नहीं चला पिछले मैच में, तो आई थिंक बट यहाँ पे जैसी पिच है, अगर ये पहले टॉस जीतते हैं श्रीलंकन्स और बॉलिंग करते हैं, तो तब मज़ा आएगा देखने का इंग्लैंड का। कि जैसे पिच रिपोर्ट में इन्होंने तो एक्सप्लेन नहीं किया, बट इट अपीयर्स इट्स स्लो, लाइक यू सेड, इट्स स्लो, ए बॉल विल स्किट, और जो बॉल विकेटों में रखेगा खिंचा हुआ बॉल, वो मुश्किल होगी हिट मारना। सीधा जा सकते हो, क्रॉस नहीं जा सकते इस पर। आई थिंक इनकी बैटिंग में अभी तक जो इनके सबसे बड़ा कंसर्न इनको नज़र आ रहा है वो कुशाल परेरा है। बिल्कुल वो फायर नहीं कर रहा है। जो यंगस्टर हैं दोनों, निशांका और परेरा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, एक होता है ना एक बॉलर आप पिक करते हो कि मैंने इसको शॉट मारनी है या इस पे अटैक करना है, you don't pick the best out of the lot. Right. He picked the fastest bowler in South African, वो नोकिया, उसको निकल के आंखें बंद करके बल्ला कहाँ है, मुंह कहाँ है, और बोल्ड हो गया। And he's a very dangerous player. यही प्रॉब्लम हो रही है इनको कि जो वो उससे स्टार्ट तवक्को कर रहे हैं वो उस तरीके से हो नहीं रहा। देखिए अभी तक जो भी दूसरा फर्नांडो जो बिल्कुल रन्स नहीं कर पा रहा, 2 यंगस्टर रन्स कर रहे हैं, निशांका और असलांका, और राजापक्षा तीसरे जो बैट्समैन है मेनली उन पे, और फिर नीचे आके इनके कप्तान से भी उस तरीके से जो फिनिशर हैं बेसिकली शनाका, उनसे भी कुछ नहीं हो रहा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो रन्स उनके 140-150 के बीच में है, 160-170 पे नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं। इनमें से
अभी श्रीलंका देख ले, श्रीलंका इज द ओनली बैट्समैन हु हैज स्कोर्ड 150 और प्लस राजा पक्ष ने शायद एक पे चार्ज किया टूर्नामेंट में गया। द थिंग इज के दे उनके बैट्समैनों को स्टार्ट मिल रहा है बट दे आर नॉट कैपिटलाइजिंग ऑन देम। T20 क्रिकेट में कहते हैं कि जो फर्स्ट 3 प्लेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बिकॉज वन हैज़ टू गो थ्रू द होल द ओवर्स। उसको से कम 15 ओवरों तक खेलना है और अगर वो 10 से 15 ओवर खेल रहा है दैट मीन्स ही इज स्कोरिंग समथिंग अबव 70 रन्स। राइट, दैट गिव्स योर टीम अ क्वेश्चन कि उसके इर्द गिर्द दूसरे लड़के खेलते रहते हैं। सो इनके लड़कों को चांस मिल रहा है, स्टार्ट अच्छा मिल रहा है बट दे आर नॉट मेकिंग द बेस्ट आउट। इवन वहाब के निशांका ने लास्ट गेम में बड़ा अच्छा वो थ्रू खेल गया पूरा, बट वो जो पार्टनरशिप है ना, आपको पूरी नीचे से भी किसी न किसी की कंट्रीब्यूशन चाहिए उसको। वो 20-15-20 रन जो एक्स्ट्रा जो आपके लिए एक विनिंग टोटल की तरफ आपने जाना वो उनको नहीं मिल रही। ये प्रॉब्लम इनकी क्यों, इसको एड्रेस कैसे कर सकते हैं मिस्टर? आई मीन व्हाई इज दैट नॉट हैपनिंग? इज इट काफी क्वालिफायर से खेलते हुए आ रहे हैं, काफी इनको चांसेस मिल चुके हैं। देखिए बात ये है कि ये T20 क्रिकेट में, किसी भी क्रिकेट में, लेकिन स्पेशली T20 क्रिकेट में जब आप मिडल ओवर्स में जाते हैं, हम पावर प्ले की बात करते हैं, एंड ओवर्स की बात करते हैं, लेकिन ये आपकी स्क्रीन पे हम लेकर आते हैं, जरा देख लीजिए जो इनकी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस हैं, ये रही आपके सामने। आपको नज़र आ रहा है कि मेन वही जो यंगस्टर्स हैं, निशांका उनकी कंट्रीब्यूशन है और तीसरे राजा पक्षा। तो बाकी आप देखेंगे उस तरीके से वो अभी तक किसी ने 100 रन भी नहीं किए, कोई ऐसी इनिंग नहीं खेली, स्ट्राइक रेट्स भी कोई ऐसे नहीं है। वो वहाँ आपको कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन चाहिए। बाकी टीमें जितनी देखें जो अब टॉप पे हैं, या तो नीचे वालों को उन्होंने बारी नहीं आने दी, अगर आई है जैसे आसिफ का कंट्रीब्यूशन था वो बड़े इंपॉर्टेंट, जैसे डेविड मिलर का कंट्रीब्यूशन था पिछले मैच में, यहाँ पे इनको नीचे से वो कंट्रीब्यूशन मिल नहीं। देखिए इनका जो मेन प्लेयर है ना वो है शनका और वो उनका कैप्टन है एंड ही इज समबडी हु इज नोन फॉर बिग हिटिंग और बड़ा अच्छा खेलता है, बट अभी तक जो है वो हमने देखा कि ही इज़ नॉट एबल टू स्कोर रन्स, जिसकी वजह से अगर आप ये देखें कि जो मोमेंटम ऊपर से थोड़ा बहुत मिलता भी है उसको जो श्रीलंका की टीम है वो कैपिटलाइज नहीं कर पा रही सही तरीके से। सो बेसिकली दे आर, उन्होंने हसरंगा को भी ऊपर भेज देते हैं बट व्हेन इट कम्स टू समथिंग ओवर 140 प्लस क्विक फास्ट बॉलर्स तो वो भी हमने देखा कि हसरंगा जो है वो भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। सो यू नो दे डोंट हैव पीपल हु आर रियली फायरिंग एट द बॉटम, नंबर 6 नंबर 7 पे एक दूसरे को कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि वो कम्प्लीमेंट नहीं कर रहे या सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर एक अच्छी इनिंग होती है तो उसके साथ जो आपको सपोर्टिंग परफॉर्मेंस चाहिए होती है किसी की, 15-20 क्विक फायर 20-30 रन्स, नॉट इन द मिडल ऑर्डर, नॉट इन द लोअर मिडल ऑर्डर, वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। जब इनकी अच्छी पार्टनरशिप चलती है, कोई आउट होता है तो फौरन ही अगले ओवर में विद इन टाइम पीरियड ऑफ 6 to 8 balls or 10 balls, they lose another wicket. So basically, they are not giving themselves a little bit of a time to go through. That's been happening to them. पीछे जितने भी आप देखेंगे अच्छे स्टार्ट्स भी हुए, कई दफ़ा 100 पे 1 आउट है, 2 आउट है, सडनली दे कोलैप्स। और उसकी एक और रीज़न ये भी है, ये बड़े मुश्किल नंबर है, नंबर 5 नंबर 6, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अभी जितने भी ये प्लेयर हैं इनके वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है। वो करते क्या है कि पार्टनरशिप बिल्ड करने की बजाय वो सेम मोमेंटम से कई दफ़ा कोशिश करते हैं कि बस आते ही हमने मारने हैं और उसमें फिर विकेटें गिरती जाती हैं। तो इंग्लैंड भी तो यही करता है, उनकी तो नहीं गिरती। उनके पास एक्सपीरियंस है, दे हैव बीन इनटू देयर रोल, उनको पता है कि कैसे एग्जीक्यूट करना है। हम वो मारते हैं, उनके रिसोर्सेज वैसे हैं। ये अभी बहुत कम खेले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। आई एम वेरी श्योर दैट द श्रीलंकन कोच मस्ट बी हैविंग a tough time. You know, his hands are full trying to figure out how to handle this. And Mickey Arthur is with us right now. आइए चल के सुनते हैं. Well, the Sharjah factor. The coach is confident that that might work in their favor. Yeah, I suppose as a coach you have to be positive all the time. Yeah. Especially it's do or die game for Sri Lanka. और वो भी टूर्नामेंट के बेस्ट टीम से है उनका, जिस तरीके से अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं इंग्लैंड के। और जहाँ तक ये मिकी आर्थर ने बताया कि ये यूज टू हैं थोड़े इस कंडीशंस का, शायद इंग्लैंड की बैटिंग को इतना नहीं पता। दे लाइक बॉल कमिंग ऑन टू द ऑन टू द बैट, थोड़ा एक्स्ट्रा थोड़ा बाउंस हो, जो हमने दुबई और अबू धाबी में देखा। यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पे आप क्रॉस निकल के क्रॉस नहीं जा सकोगे, आपने जाना है तो सीधे बल्ले के साथ सीधा ही जाना है। So you work with Mickey Arthur, वो कराची किंग्स में आपके साथ थे। किस किस्म के कोच है, कैसे इंसान है? He's a nice guy, simple guy, very passionate. एंड ऑब्वियसली जब टीम हारती है तो उतना ही उसको अफसोस होता है, दुख होता है, जो कि हर कोच को होता है। सपोज इतनी मेहनत करते हैं, सारा दिन ग्राउंड में बैठते हैं।
So he's good. Mickey Arthur is good with young team. Like पाकिस्तान के साथ young teams ने बड़ा अच्छा किया था. अब श्रीलंका के साथ उसके मतलब की टीम उसको मिल गई है, स्क्वाड मिल गया है. You know, young लड़के, he took name of Asalanka and you know the other batsman Nishanka. They are in good nick and they're going to be a top players in next couple of years for Sri Lanka. Yeah, so rebuilding phase जो है मुकम्मल हो गया है. अब उसको सिर्फ मजीद solidify करना है. I think that's where boundaries की हमने पहले भी बात की थी, जिक्र किया था कि इंग्लैंड जो है वो हर 100 बॉल्स में उनकी जो एवरेज है बाउंड्री हिटिंग की वो 19.19 और पिछले 2 साल के अंदर वो 543 बाउंड्रीज इन्होंने लगाई हैं. So let's take a look at this graph. ये आपकी लाता हूँ. They're the highest boundary hitters average in the T20 format. Versus Sri Lanka, which is not there. This is the highest boundary percentage. England is right on top. Afghanistan, West Indies, New Zealand, Pakistan, South Africa, India, Australia. Sri Lanka is not on that list, which means they're really at the bottom of the list. I have the full list there, and yes, that is true. Second page के ये दूसरा page है. उसमें Ireland, Zimbabwe, Bangladesh और फिर Sri Lanka है. बिल्कुल at the bottom of the list. This is a big challenge. पहले पेज से जरा दोबारा जाएं because a very interesting thing you'll see on the first page. Misbah, I want you to comment on that. ये पहला पेज दोबारा है. England is on top. Guess who's sitting at number 2? Afghanistan. Yes. This is And really then T20 क्रिकेट खेलने के लिए थोड़ा पागल होना जरूरी है. That stat really shows that, clearly shows that you have to be aggressive. You have to be aggressive. It Yeah. shows that. Even New Zealand is up there at number 1. Yes. Seems I can understand. They hate taking singles. And I'm really happy to see Pakistan above South Africa, India, Australia. Yeah, India is right down there. और जो image India का है, generally था या है world cricket में कि they have the big hitters in this format. Obviously that showed कि they are not. They're not. And That's let's why go they are back to struggling. the page again. जो आखिरी पेज है इसका, जहाँ पर आपने श्रीलंका को बॉटम ऑफ दिस लिस्ट देखा है, जो बिल्कुल आखिर में आ जाते हैं, वहाँ पर भी आयरलैंड, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश. That also, by the way, बांग्लादेश के लिए भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए. श्रीलंका के लिए तो है ही है, but look at that. Because it's in T20 since 2020. जी. So recently आप देख सकते हैं कि जिन टीमों ने स्ट्रगल किया है वो नीचे हैं और जो उससे पहले से अच्छा खेलते हुए आ रही हैं वो मोमेंटम वो उनका चल ऊपर रहा है है, ऊपर, बिल्कुल। बिल्कुल वाज़े तौर पे नजर आ रहा है. और श्रीलंका एवरीवन नोज कि वो जिस तरह रीबिल्डिंग से गुजर रहे थे और बड़ी उनकी एवरेज सीरीज़ें गई हैं पिछली, इस वजह से भी वो नीचे गए हैं. अदरवाइज अभी ये टीम जिस तरीके से खेल रही है, आई थिंक कि जब ये स्टैट्स आगे जाएंगे तो दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन. एक सवाल है मेरा, because we've got 2 coaches here, and you know you have been in the both. I mean, all of you actually. How long does it take for a team to rebuild itself? When एक होता ना रिटायरमेंट्स हो गई, 4-6 खिलाड़ी इकट्ठा जो है जैसे टीम से चले मिसबा गए. और यूनुस गए थे एकदम, सो यू नो बड़ा बिल्कुल. मिडिल ऑर्डर में बड़ा गैप आया था हमारी टेस्ट क्रिकेट में और वनडे में. Right. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एटलीस्ट कपल ऑफ इयर्स आई रेकन टू स्टार्ट. वो भी अगर आपके पास प्लेयर्स हैं जिनको आप रेगुलर और कंसिस्टेंट चांस देंगे तो फिर मे बी उतने ग्रेट्स ना बन सके, बट दिल बी ऑन द राइट काइंड ऑफ ट्रैक टू रीच टू दैट ग्रेटनेस जो उनके सीनियर प्लेयर्स छोड़ के गए हैं. बट 2-1 साल लगते हैं. देखिए मगर सिचुएशन पे डिपेंड करता है. इस पे सिर्फ कोचेस का नहीं होता कि कोच ने टीम बिल्ड करनी होती है. रिमेंबर दैट, कोच नहीं सिर्फ बिल्ड करता, ये क्रिकेट बोर्ड टीम को बिल्ड करता है. इसमें हर बंदा इन्वॉल्व होता है, हर बंदा चिप इन करता है, हर बंदा स्टेक होल्डर होता है, तो तब टीम डेवलप होती है. ये आपको वेस्टर्न वर्ल्ड ने बताया, ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया कि अगर एक पॉलिसी है कि सम पीपल हैव टू रिटायर एट सर्टेन एज और सर्टेन टाइम, they'll bring the youngster, they keep bringing the younger players in. They might struggle for a little bit. जो स्ट्रगल की बात करना है, बट बोर्ड का एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन. मैंने तो ये भी सुना है कि हमारे बोर्ड में कुछ लोग हैं जो पाकिस्तानी कप्तान के व्हाट्सएप का रिप्लाई 3 दिन बाद करते हैं. कौन है सिमर? पाकिस्तान बोर्ड में है. अच्छा, You guys मुझे should know. इल्म नहीं है. आप लोगों की बात मैंने कभी फोन ही नहीं किया होगा नहीं उसको तो शायद. आप अभी भी है? अभी की बात अभी मौजूदा बोर्ड में हाँ, जो कप्तान के व्हाट्सएप मैसेज का 3-3 दिन तक 2 दिन रहेगा. बाद. 2 दिन बाद जवाब दे. Yeah. मैसेज पे भी तो डिपेंड करता होगा किस नौयत का अब मैसेज. पाकिस्तान टीम का कप्तान फोन करना, यू गॉट अ जॉब बिकॉज ऑफ दीस प्लेयर्स मैन. Yes, that's true. दे आर अर्निंग मनी बिकॉज ऑफ दीस प्लेयर्स. तो इसमें मैं जस्ट टू फिनिश माय व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि पॉलिसी बनना बहुत ज़रूरी है. एंड देन एवरीवनस गॉट टू वर्क टुवर्ड इट. सेलेक्टर को कोच के साथ मिलके करना पड़ेगा. इवन द चेयरमैन हैज़ टू नो व्हाट इज हैपनिंग. द सीईओ नीड्स टू बी इन्वॉल्व. इवन कोच से नीचे जो नीचे वाले कोचेज हैं, दे नीड टू नो द व्हाट पॉलिसी वी आर. आपने कहा चेयरमैन हैज टू बी इन्वॉल्व.
Is the Australian Cricket Board chairman or the New Zealand Cricket Board chairman or the English Cricket Board chairman involved in No, the selection no. of the Yeah, one players? was No. England, he got sacked. He got नो देखिए, आपके अभी जिस आपके तरह- कॉन्स्टिट्यूट में ये है आपके पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में कि चेयरमैन हैज टू बी इन्वॉल्वड इन दैट ही हैज टू पिक द Okay, कैप्टन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ये, हाँ, ठीक है, ये उनके हमारे नहीं में है, उनके नहीं है। ये नहीं है, उनके में नहीं है। जो बंदा गलत बनाया ना उन्होंने constitution। सिलेक्शन में इन्वॉल्व है उसको उस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। व्हेन द चेयरमैन अप्रूव्स द टीम और चेयरमैन की से भी होती है तो देन ही शुड नो व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज होता ही है कि समटाइम्स यू बीन गिवन द टास्क कि अच्छा ठीक है हमने टीम रीबिल्ड करनी है, लेकिन सडनली जब अब एक सीरीज़ हारते हैं तो ओहो देन वो इनसिक्योरिटीज़ शुरू हो जाती हैं और देन वो जो आगे और पीछे कदम होते हैं वो इसीलिए होते हैं। तो वकार भाई की बात ठीक है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि आप एक पेज पे हों और फिर जो उसमें सक्सेस है या जो भी हिकअप्स आती हैं वो आपको पता हो कि भाई ये आएंगे। जब और ये- रीबिल्ड आप करते हैं टीम तो आपको टाइम लगता है। इम्पोर्टेंट है आप दोनों से क्वेश्चन, इवन वहाब से भी ये कितना इम्पोर्टेंट है कि जो इंटरनेशनल आपके टूर्स ऑर्गेनाइज होते हैं, इवन अंडर 19s के, इवन ए के, इवन पाकिस्तान टीम के, कि कैप्टन और कोच का उसको इन्वॉल्व होना बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ जाके कितने प्रैक्टिस मैच चाहिए आपको, पहले आपको 3 डे चाहिए कि पहले T20 चाहिए कि पहले टेस्ट मैच चाहिए। मेरा नहीं ख्याल आप लोगों से पूछते होंगे कि तुम्हारे बस, पास एक जीनियस बैठा है वहाँ। कई मतलब कभी कभी हो जाता है, लेकिन आई थिंक यू नीड टू डू इट ऑन रेगुलर बेसिस और एक एक चीज़ आपको प्लान करनी चाहिए और पूरे तरीके से कोचेस इन्वॉल्व होने चाहिए, टीम मैनेजमेंट उसमें मेरे ख्याल में इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ जाके। आपके आइटनरीज इस तरह की होते हैं कि वहाँ फिर जब रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो फिर वो क्रिटिसिज्म सीधा जो है वो प्लेयर्स पे और कोचेस पे आता है। वसीम भाई ये बात बड़ी जरूरी है लोगों समझने की, सिर्फ ये प्लेयर्स के ऊपर नहीं डाली जा सकती बात खाली। सॉरी मैं वसीम भाई को सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो कसौटी बार बार कही जा रहे हैं कि एक जीनियस बैठा हुआ क्रिकेट बोर्ड में, उसका नाम भी बता दें प्लीज। नो हाँ आज ही बताएंगे बट ब्रेक में, हमको बताएंगे मगर ब्रेक में। आप लोग लीजिए एक ब्रेक, देखते रहिए स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स ICC T20 वर्ल्ड कप की खसूसी कवरेज। विल बी बैक इन द पेविलियन मोमेंटरीली। वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, हमारी खुसूसी कवरेज ऑफ द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। शारजाह से बराह रास्त आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं आपसे कुछ देर बाद। श्रीलंका बामुकाबला इंग्लैंड, टॉस के लिए कुछ देर में हम तैयार हो जाएंगे। हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ चीज़ों की, मुख्तलिफ पहलुओं की, बोर्ड्स के स्ट्रक्चर्स की, रीबिल्डिंग की, बीच में ये बात निकल पड़ी। अब से कुछ लम्हात बाद आज हमने फैसला किया कि टॉस के बाद जो है मैं ये पर्चियां बांटूंगा स्कोर्स दिखने के लिए, लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट है आज, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। मीनवाइल तला तैयब का आपको बताता चलूं दोस्तों, आज हमारी नेशनल चैंपियनशिप, तला तैयब हमारे ओलंपियन स्टार बॉय, वेट लिफ्टिंग में बड़े जबरदस्त हैं। उन्होंने आज 3 नए नेशनल रिकॉर्ड्स जो हैं वो कायम किए हैं वेट लिफ्टिंग के अंदर। सो वेल डन तला, 3 गोल्ड मेडल्स एंड 3 न्यू नेशनल रिकॉर्ड्स। सो तला तैयब वेल डन, आवर ओलंपियन, रियली अप्रिशिएट इट। बहुत ज़बरदस्त तला तैयब, आपने पाकिस्तान का नाम हम सबको वेट लिफ्टिंग का याद कराया, रिमाइंड कराया जब आप ओलंपिक्स में गए। आप और साथ में नदीम जिन्होंने जैवलिन थ्रो की, उन्होंने हमें बताया कि भाई ये भी हो रहा है काम सारे का सारा। The other good news is that the West Indian women's cricket team has arrived into Karachi this morning. So welcome to the West Indian women's cricket team to Pakistan. We hope you have a wonderful, memorable and an enjoyable stay and we get to see some really great cricket. तो उनको भी खुशामदीद कहते हैं। शारजा में इंग्लैंड बामुकाबला श्रीलंका, टॉस के लिए से कुछ लम्हात बाद हमारे कप्तान जो हैं दोनों टीमों के वो आएंगे पिच की तरफ। उससे पहले वसीम, फाइनल थॉट्स ऑन श्रीलंका? well actually final thoughts I'll have to hold you there because both the captains have started walking out. टेबल के ऊपर सूरत हाल इस तरीके से कि श्रीलंका के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। इंग्लैंड जो है वो बिल्कुल टॉप ऑफ द टेबल है 6 पॉइंट्स के साथ, और इस वक्त दोनों कप्तान जो हैं वो वॉक कर रहे हैं, पिच की तरफ रवाना हो गए हैं। आपको लेकर चलते हैं शारजाह स्टेडियम फॉर द टॉस। Well, there you have the news out of Sharjah. Sri Lanka have won the toss and elected to. They are going to bowl first, and this is now the first time that England will have to set up a target. Now, सूरत हाल ये है दोस्तों कि वो हमने कहा था पर्चियां आप लोगों की मेरे पास तैयार पड़ी हुई हैं, लेकिन वसीम भाई क्योंकि आप सबसे ज्यादा जीते हैं अब तक, so वसीम, what's going to happen is this is your पर्ची, but here's the thing,
You can't put in the total here today. Okay. आप जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं उसको ये पर्ची पकड़ाएं, वो आपके लिए स्कोर गेस करेगा, जिसको भी आप ट्रस्ट करते हैं इस पैनल पे उसी को दीजिएगा। Who came up with this idea? क्या ये सीधा है ना, No. आप भी यही करें, आप भी चूज करें। आप हमें पहले बताया करें, मैं नहीं खेलता। नहीं खेलते हो? चलो, आपकी मर्जी है वहाब, आप मतलब ऐसे ही होगा जो आप कह रहे हाँ जो मैं कह रहा हूँ ये उनको दे दीजिए, एक दूसरे में बांट लें और अपना अपना नाम लिखते हैं, जो जिसके लिए गेस कर रहा है उसकी पर्ची के ऊपर फोल्ड करके मुझे हैं। दे वहाब के लिए गेस करूंगा। दें। आप किसी जिसको भी आप ट्रस्ट करते हो आप दें कि मेरी पर्ची पे मैं चाहता हूँ वसीम करे गेस, वसीम उन्होंने आपस में एक्सचेंज कर ली तो आप दोनों फंस गए, चॉइस ही नहीं रही। ये चॉइस ही नहीं रही। चलो तुसी 190 लिख देना, मैं हार जाऊंगा। इंग्लैंड बैटिंग नहीं ये टॉस होना चाहिए, इन्होंने 190 लिख देना, मैं हार जाऊंगा। तू भी 100 200 लिख दे। भाई करो ना चेंज, दिस इज द होल थिंग। ऑलराइट, लेट्स सी हु डज व्हाट टू द अदर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं बात नहीं कर सकते, एक दूसरे को बताना नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं दूसरे I'm की पर्ची asking, is England batting first? I just forgot. जी, England is batting first. England is batting first. Sri Lanka bowls first today. This is a new challenge for वो। आइए जरा टीमों पे प्लेइंग 11 पे नजर डाल लेते हैं। इंग्लैंड की टीम सबसे पहले आ गई है। प्लेइंग 11 हमारे पास है इंग्लैंड की, आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं। ये रही इंग्लैंड की प्लेइंग 11 और आप देख सकते हैं जॉस बटलर थे, रॉय, मलान, मॉर्गन, बेयरस्टो, लिविंगस्टन, मोइन, वोक्स, जॉर्डन, रशीद, मिल्स, नो चेंज देयर एंड दे लुक गुड एंड सॉलिड। और इसके साथ ही श्रीलंका की टीम की तरफ जाते हैं। श्रीलंका की टीम वसीम Same squad. They haven't changed anything. Pereira, Nishanka, Solanka, Avishka, then Rajapaksa, Shanaka, the finisher. So it's a good side. The same side, 3 fast bowlers, 2 spinners. Yeah, so good stuff there going on. That is like a good squad. So momentarily the game in Sharjah will start. मेरे पास सारी पर्चियां आ गई हैं। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। अब ये देखना है किसने किसको सैबोटाज किया है या किसने किसके लिए भरपूर तरीके से टोटल जो है वो लिखा है। जो अपना लिखना था वो लिख दिया। जी, जो लिखना था वो लिख दिया। वैसे what do you think, Misbah, would be a good total for England to defend on this pitch? 700. It will be a really good total. देखिए इंग्लैंड की तो कोशिश हमेशा से यही होती है T20 में कि दे जस्ट लुक टू स्कोर समथिंग, 200 करें आप। वो स्टार्ट ही ये करते हैं, उनकी जो साइकी है। बट लुकिंग एट द कंडीशंस थोड़ा सा कम कर लें उससे, थोड़ा सा कम 15-20 कर लें। वसीम, वो जाने से पहले वो जो सेंसर्ड वर्जन आपने सुनाना था अब्दुल कादिर वाला, जो आपने नेहरू कप का एक It's a long story, man. It is, we have some time. No, we don't. We do. We have 5 minutes. We have plenty of time. ਤੁਸੀਂ Once upon a time. ऐसे फिर ना करने वाली गल हुई ना बुनियादी तौर पे ये बाद में नहीं, सुन I think लीजिएगा। हम वेस्ट इंडीज से कहाँ मैच खेले थे नेहरू कप में? I think it was in लखनऊ और कलकत्ता में फाइनल नहीं, फाइनल नहीं, उससे पहले भी खेले थे ना इनसे हम। गुजरात समवेयर लखनऊ था या गुजरात था। वी वेंट ऑन द प्राइवेट जेट। उसमें सो हम गए थे। प्राइवेट जेट से दोनों टीमें वापस आ रही थी किसी दूसरे मेन शहर। सो यू नो दोनों टीमें थी सिर्फ। एंड कर्टली एम्ब्रोज नया आया था। बिलीव मी, ही वाज एन एंग्री यंग मैन। He was always angry, never smiled. He was one mean dude. Right. As a fast bowler, you know, 6'8" and glare and stare. तो वो मैच खत्म हुआ, वो जीत गए आई थिंक वो मैच। तो हम दूसरे यू नो मैच दोनों टीमें थी उस पे चार्टर्ड प्लेन पे। तो यू नो मैं आगे इजाज के साथ बैठा हूँ या किसी के साथ बैठा हूँ, इजाज, कादिर भाई और सलीम मलिक राइट एट द बैक आई थिंक। एंड उसके 3-4 सीजन छोड़ के वो कर्टली एम्ब्रोज भी बैठा था। दिस वाज बिफोर द मैच नहीं बिकॉज़ व्हाट हैपेंड इन द मैच आफ्टर दैट। अच्छा, सो सेंसर करना। So, Kadir Bhai was very naughty, you know, good sense of humor, naughty, and अगर वो पाकिस्तान टीम से ऐसा मजाक करें तो सीनियर थे तो it was fun। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा पेपर था तो उन्होंने जहाज उड़ा है, तो उन्होंने पेपर ऐसे करके ना वो बना के पहले एम्ब्रोज को मारा है। अब इजाज इधर बैठा था उनके और सलीम मलिक इधर बैठा था। एंड एम्ब्रोज जस्ट लुक बैक लाइक दिस एंड ये उसने ये वाली घुरी कराई है उसको। एंड देन सुल्तान रही अली। हाँ, वो सारे एकदम सीरियस हो गए हैं। कादिर भाई ने फिर उसको मारा है। उसने फिर देखा, उसने कहा कि डोंट डू दिस मैन, whoever is doing this। सो यू नो जहाज लैंड किया है, उन्होंने फिर 2-3 मारे हैं, ये बैठा रहा है। उन्होंने जहाज लैंड किया, ये वो जा रहा है उसकी तरफ टैक्सी होने। हमने देखा है एकदम छक छुक, यू नो शोर मच गया है। उसने कादिर भाई को उठाया है
तीन सीटों के दरमियान फेंका है. You know, he was 6'8". Kader bhai was very strong as well. Yes. Very strong. Yes. He's विव tried. विव भागा था आगे से. He tried kicking him back, but I think वो दो सीटों में कादर भाई फंस गए थे. But then Viv ran from the front and grabbed hold of him, and Imran bhai just sat there. So for us, the youngster, it was a big deal. I never seen anything like this. Of course. मेरा मतलब है मजाक बंदा कर लेता है. ज्यादती की थी एमरोज ने यार. हाँ, एमरोज ने जाती की थी. ये तो काफी But कादर भाई kicked him back. टुडे कराया उन्होंने नीचे. नहीं काफी डिलीट की. काफी डिलीट की. मुझे समझ में आ गई क्योंकि ये इस सारी असना में यकीनी तौर पे अल्फाज भी तो इस्तेमाल हुए होंगे. हाँ, और वो अब ऐसे अल्फाज हैं और टाइम की कमी की भी वजह है. टाइम की कमी नहीं है. अभी भी हमारे पास बड़ा टाइम है. अगर आप अल्फाज ऐड करवाना चाहते हैं इनके ट्विटर पे आ जाएंगे किसी टाइम. चले कोई अच्छा. अरे ये जरा मिसबाह क्लोजअप दिखाएं प्लीज. मिसबाह क्लोजअप दिखाएं. ये देखें मिसबाह उल हक के मुंह में दांत भी हैं. बतीसी पूरी नजर आ रही है. कभी कभार इस तरह मुस्कुराते हैं. ये अच्छी चीज है. इसी तरह खुश रहे, मुस्कुराते रहे. दिल पे लगा लिया. कोई बात दिल पे नहीं लगाते. हाँ, दिल पे नहीं लगाते. कभी नहीं लगानी चाहिए. आपको कह रहा हूँ. मुझे तो लग गई है. But this is the banter that everybody is talking about, Wasim. इसके ऊपर कोई एक्सपर्ट एनालिसिस आप देना पसंद करेंगे? So who do you think is going to win? Huh? Who do you think is going to win When tomorrow? today? So far, England looks favorite, but toss. Sri Lanka Now ने because Sri जीता. Lanka won the toss. Yeah, so pick your team. I don't know. इंग्लैंड. हमने खाने में क्या ऑर्डर किया वैसे? कोरमा तो नहीं है. मेरा तो डाइटिंग का आ रहा है हम तीनों का. मिसबा दी कढ़ाई आ रही है. मिसबा आ रहा है काबली पुलाव ते नाल 6 किलो गोश्त. और टमाटर की चटनी भी खास तौर पे उन्होंने इसके ऊपर बड़ा जोर डाला है. स्पेशल ऑर्डर है. और दोस्तों हम आपको लेकर जा रहे हैं शारजा, जो कि हमारा खाना आने वाला है. वहां पर अलबत्ता श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच हो रहा है. जाइए देखिए, एंजॉय कीजिए. मिलते हैं मैच के बाद.